الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداع إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزه الذي جمع مالا وعدده، يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة، وما أدريك ما الحطمة، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة
إنها عليهم موصدة في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات ومن شر النافثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. صدق الله العظيم. جزاك الله ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. خواتین و حضرات، ایم نیوز کی افطار نشریات فرقان رمضان میں آپ سبھی کو کہتے ہیں خوش آمدید. میں ہوں حافظ نجم الثاقب اور میرے ساتھ موجود ہیں ایمان نواز. اور یہ رمضان کا ناظرین پہلا عشرہ ہے، رحمتوں کی بارش کا موسم ہے اور آسمان کے در کھلے ہیں، زمین پر سجدوں کی خوشبو بکھری ہوئی ہے. یہ وہ دن ہے جب خطائیں بےتاب ہیں کہ وہ معاف ہو جائیں. یہ وہ دن ہے جب دعائیں قبولیت کے دہلیز پر کھڑی ہیں. یہ وہ دن ہے جب رب اپنے بندے کو پکار کر کہتا ہے کہ آؤ میں تمہیں معاف کر دوں گا. یہ وہ ساعتیں ہیں جب آنکھ کا ایک آنسو برسوں کے گناہ کو دھو سکتا ہے. یہ وہ دل ہے اور یہ وہ دن ہے جس میں دل کی ایک سچیا عرش تک پہنچ سکتی ہے. اور یہ رحمت کا عشرہ آج 5واں روزہ مبارک ہے. یہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ رب ناراض نہیں ہوتا. رب تو بار بار موقع ڈھونڈتا ہے اپنے بندے کو سنوارنے کا، اپنے بندے کو نوازنے کا. اور ایک بار اللہ پر توکل رکھ کر دیکھیں کہ اللہ آپ کی زندگی کو کیسے سنوارتا ہے، اللہ آپ کی زندگی کو کیسے بدلتا ہے، اور وہ بار بار اپنے بندے کو موقع دے رہا ہے. اور بڑی خوبصورت آواز میں آج آپ نے تلاوت کلام پاک سماعت فرمایا. ہم لوگ خواتین و حضرات تلاوت سماعت فرما رہے تھے جناب قاری محمد اسفندیار دلاور خان صاحب کی آواز میں. بہت خوبصورت. ہمارے ساتھ قاری صاحب موجود ہیں، خصوصی طور پر ملیشیا سے تشریف لائے ہیں. حضرت نے PhD آف قرآن اینڈ سنہ اسٹڈیز میں کیا ہوا اور ملیشیا اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی سے، اور وہیں پر منسلک ہیں ایز اے اسسٹنٹ پروفیسر، اور یہاں پر پاکستان میں کچھ عرصے کے لیے موجود تھے. بہت شکریہ حضرت، آپ کو اپنی نشریات میں خوش آمدید بھی کہتے ہیں. ایک دو گفتگو کر کے جو ہے وہ چند ایک باتیں کر کے اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب بڑھتے ہیں. حضرت فرمائیے گا، ماشاءاللہ سے آپ کا تو اتنا وہ سفر ہے اور پھر یہ سارا سلسلہ، آپ کو جو لذت اور جو چیزیں آپ کی پروفائل بھی دیکھ کے ہم دیکھ رہے ہیں قرآن و اسٹڈیز کے حوالے سے، سعودی عرب مدینہ المنورہ میں آپ نے اپنی خدمات سر انجام دیں، پھر ملیشیا میں ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں تراویح کے حوالے سے بھی، قرات کے حوالے سے بھی. پاکستان میں اس کا آپ کو کیا رجحان نظر آتا ہے؟ اور پاکستان میں بھی ماشاءاللہ سے ٹیلنٹ بہت موجود ہے. ایران میں مقابلے ہوں تو ہمارے قرآن حضرات وہاں پر جاتے ہیں، اور سب سے زیادہ حفاظ کرام بھی میرا خیال ہے کسی اسلامک کنٹری کے پاس ہوں گے تو وہ بھی پاکستان اس میں شامل ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. پاکستان ہمارا مملکت خداداد ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس ملک کو حفاظ اور قراء سے بھرا ہوا ہے. الحمدللہ اس دھرتی کی زمین قرآن، اہل قرآن کے ساتھ محبت کرتی ہے الحمدللہ. اور یہاں پر جو مدارس، جو مختلف مکاتب فکر کے جو مدارس ہیں الحمدللہ جو کام کر رہے ہیں، بہت بہترین کام کر رہے ہیں. لیکن ابھی بھی اس فیلڈ میں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ قرآن کریم ایک ایسا سمندر ہے جس میں آپ غوطہ لگائیں تو اس کا کوئی ساحل نہیں ہے.
چاہے وہ تفسیر کے حوالے سے ہو یا پھر قرآن کریم کو مقامات کے ساتھ پڑھنے کے حوالے سے ہو یا قرآن کریم کی تجوید کے حوالے سے ہو یا اس کی قراءت پڑھنے کے حوالے سے ہو. جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو علماء نے اپنی زندگیاں کھپا دی ہیں اس کے اندر, اور یعنی 30 جلدوں پر اور 40 جلدوں پر قرآن کی تفسیریں لکھ کر اور فرمایا کہ اس کا حق ہم ادا نہیں کر سکے. قرآن ایک ایسی عظیم کتاب ہے اور کریم کہ انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون, اللہ تبارک و تعالیٰ کی وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عظیم کتاب کو سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا. لیکن یہ ایک بہت ہی وسیع سمندر ہے اور اس میں ہماری پاکستان میں ماشاءاللہ بہت اچھا اور عمدہ کام ہو رہا ہے. اس میں اور بھی اس کی حضرت چونکہ ہمارے پاس وقت جو ہے وہ قلیل ہے, لیکن آپ کی آمد کا بہت شکریہ. اسی بہانے ہماری ملاقات ہوگی. اللہ آپ کو سلامت رکھے, اور ہم کسی دن جو ہے وہ چاہیں گے کہ پاکستان سے جانے سے پہلے ہم اس کو موضوع رکھ کے جو ہے وہ آپ سے گفتگو فرمائیں. بہت شکریہ آپ کی آمد کے لیے. خواتین و حضرات, نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں. پارلیمنٹ میں بھی جناب موجود ہوتے ہیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ لوگ سیشنز میں ان کی سنتے رہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سید ذیشان بخاری صاحب. السلام علیکم, خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ جی, رمضان بہت مبارک ہو. آپ کو مبارک. خیر ذیشان بھائی, نعتیہ کلام کے شاعر. وہ جو میثاق نبیوں سے باندھا گیا اس کا تھا مدعا خاتم الانبیاء. وہ جو میثاق نبیوں سے باندھا گیا اس کا تھا مدعا خاتم الانبیاء. بزم ہستی سجا کر دکھایا گیا مانی لولاک کا خاتم الانبیاء. تھا وہ قصر نبوت کا منظر حسین جس میں کوئی کمی تھی کہیں نہ کہیں. تھا وہ قصر نبوت کا منظر حسین جس میں کوئی کمی تھی کہیں نہ کہیں. آپ آئے نبوت مکمل ہوئی رنگ کھل کر کھلا خاتم الانبیاء. آپ آئے نبوت مکمل ہوئی رنگ کھل کر کھلا خاتم الانبیاء. وہ جو پہلے تھے جتنے پیغمبر سبھی اپنے اپنے زمانوں کے تھے سب نبی. وہ جو پہلے تھے جتنے پیغمبر سبھی اپنے اپنے زمانوں کے تھے سب نبی. آپ ہی کی نبوت ہوئی دائمی ابتدا انتہا خاتم الانبیاء. آپ کے بعد کوئی نبوت نہیں اب ہو جاری یہ ہرگز بھی ممکن نہیں. آپ کے رب کا فرما ہے قرآن میں وہ ہے سچا خدا خاتم الانبیاء. آپ کے
رب کا فرما ہے قرآن میں، وہ ہے سچا خدا خاتم الانبیاء۔ آدم و ابن مریم ہو، آدم و ابن مریم تلک سب نبی، جن کی دنیا میں قائم امامت رہی۔ آدم و ابن مریم تلک سب نبی، جن کی دنیا میں قائم امامت رہی۔ صحن اقصی میں سب مقتدی بن گئے، آپ تھے مقتدا خاتم الانبیاء۔ آپ ہی سے ہوا روشنی کا سفر، جگمگانے لگے سب زمان۔ سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ مہمان بھی موجود ہیں۔ مہمان کون ہیں؟ جو تعلیم کے شعبے میں مہارت رکھتی ہیں اور نوجوانوں کی تربیت اور اخلاقی اقدار پر خاص تحقیق بھی کر رہی ہیں۔ رمضان المبارک ایسا مہینہ ہے جس میں صبر کا درس دیا جاتا ہے، برداشت کا درس دیا جاتا ہے اور سکھایا جاتا ہے کہ تقویٰ کیا ہے، اپنے اخلاق کو کیسے چینج کیا جا سکتا ہے، رویوں میں تبدیلی کیسے لائی جا سکتی ہے۔ اس میں ایک استاد کا کردار بہت اہمیت رکھتا ہے۔ ایک ماں کی گود ہوتی ہے، اس کے بعد جب بچہ اسکول جاتا ہے تو استاد سے بہت کچھ سیکھتا ہے، اور بہت ساری ایسی عادات ہوتی ہیں جو استاد سے بچے اپناتے ہیں۔ اس حوالے سے بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں آج ڈاکٹر عقیلہ صاحبہ۔ السلام علیکم ڈاکٹر عقیلہ صاحبہ۔ وعلیکم السلام۔ رمضان آپ کو بہت بہت مبارک ہو اور بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ سیٹھ اسامہ چترالی صاحب موجود ہیں، آپ اسلامک اسکالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضرات گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا جو موضوع رہے گا وہ رہے گا احترام رمضان، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ بچپن میں جب ہم موجود تھے تو اس وقت کا رمضان اور آج کا رمضان تھوڑا سا مختلف ہے۔ آپ اپنے محلے میں نکل کے دیکھیں، خیر اب تو محلہ سسٹم بھی ختم ہوتا جا رہا ہے اور سوسائٹیز کے اندر جب سے ہم شفٹ ہو گئے ہیں تو اپنے گھر کی حد تک ہی ہر چیز محدود ہو گئی ہے۔ ایون کوئی فیسٹیویٹی ہو، عید کا سما ہو، ہر چیز جو ہے وہ گھر کی حد تک محدود ہوگی، لیکن گھر میں بھی ویسا نظام نہیں رہا۔ تو ڈاکٹر صاحبہ، نوجوانوں کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، آپ ان کو پڑھاتی ہیں، یہ جو تبدیلی آئی ہے اس کی پہلے تو اس کو مثبت تبدیلی سمجھتی ہیں آپ، یا اس میں جو ہے وہ اخلاقی اقدار کی جو ہے وہ کمی سمجھتی ہیں کہ بچے اس طریقے سے رمضان کی روح کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں، اس کا احترام اس طریقے سے ہو نہیں رہا؟ پہلے ہم دیکھتے تھے کہ کوئی روزے دار کے سامنے جو ہے وہ کتراتا تھا کھاتے ہوئے، پانی پیتے ہوئے، لیکن آج تو بالکل رویہ تبدیل ہو گیا۔ جی نجم، آپ نے ایک بہت ہی عام جو ایک مسئلہ ہے اس کی طرف اشارہ کیا ہے، لیکن میں اس پہ مورد الزام نہیں ٹھہراؤں گی نوجوان نسل کو، کیونکہ اس میں ان کا قصور کم ہے، اور ہم جیسے لوگوں کا، والدین کا یا اساتذہ کرام کا، یا جو معاشرے میں اکابرین ہیں، ہمارے علماء کرام ہیں، ہم سب جو لوگ ہیں اس کے ذمہ دار ہیں، کیونکہ ایک بچے کو تو نہیں پتہ، ایک نوجوان کو تو نہیں معلوم کہ اس نے کس طرح سے اسلامی اقدار کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے۔ وہ اساتذہ کا کام ہے، وہ والدین کا کام ہے، وہ معاشرے کا کام ہے کہ وہ ان کو سکھائیں۔ تو یہ جو فرق نظر آ رہا ہے اس میں ہمیں سب سے پہلے اپنی کوتاہی کا اعتراف کرنا چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ نوجوانوں کو، کیونکہ صرف اب یہ تین جو تکون میں نے آپ کو بتائی ہے کہ والدین ہیں یا معاشرہ ہے یا اساتذہ ہیں، یہ صرف نہیں ہے محور اب بچوں کے توجہ کا، بلکہ اب سوشل میڈیا جو ہے وہ ایک ایسا فیکٹر ہے جو کہ بچوں کو کی تربیت میں بھی اب ایک کردار ادا کر رہا ہے۔ تو یہ جو سوشل میڈیا کا فیکٹر ہے،
इसमें मैं समझती हूँ कि जो हम जैसी जनरेशन के लोग हैं उनको भी आगे आने की ज़रूरत है, ताकि वो बताएं कि क्या सही है और क्या गलत है, क्योंकि जब तक सही और गलत की पहचान नहीं होगी, क्योंकि इंफॉर्मेशन तो पड़ी हुई है, सही बात है, लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल, और उसमें से आपने क्या पिक करना है, आपको क्या अपने साथ संभाल के चलना है और क्या आपने छोड़ देना है, ये फ़र्क जो है ये बताना जो है ये असातिज़ा कराम का फ़र्ज़ है। साहब ये बताइएगा कि बीइंग अ टीचर आप नौजवानों को रमज़ान के दौरान ये सब्र बर्दाश्त ये सबसे ज़्यादा कमी इस वक्त मौजूद है, उस हवाले से क्या तालीम देना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूल करीम अम्मा बाद। असल में नौजवानों के साथ सब्र और वो चीज़ें जैसे डॉक्टर साहिबा शेयर कर रही कि टेम्परामेंट्स चेंज हो गए हैं, जैसे कहते हैं अटेंशन स्पैन चेंज होता जा रहा है विद टाइम, और अब जैसे कहते हैं हमें जब टीचर्स हम पढ़ते थे तो टीचर्स हमें रिसर्च पेपर्स देते थे, ठीक है, हमें वो पढ़ के तैयारी करके जाना होता था। अब बच्चे कहते हैं सर बस स्लाइड्स देना, जहाँ छुड़ाए, ठीक है। तो मैं ये चीज़ कहूँगा कि जो जब हम कहते हैं तरबियत की बात करते हैं या किसी भी चीज़ की, सो जो कैरेक्टर बिल्डिंग सोसाइटी की होती है वो किसी एक फैक्टर से नहीं हो सकती, वो सिर्फ एजुकेशन से नहीं हो सकती है, वो सिर्फ पेरेंट्स से नहीं हो सकती है, उसके लिए पूरा एक इकोसिस्टम आपको बनाना पड़ता है। एक सोसाइटी के एक कलेक्टिव कोई कॉमन ग्राउंड्स को आपको डिफ़ाइन करना पड़ता है। जैसे आप कभी एग्जाम्पल देते हैं ना, यूरोप में जाएँ तो अच्छा आपको हर इंसान ट्रैफिक के रूल्स फॉलो करता नज़र आ रहा है, अच्छा वहाँ जब कोई मसला खड़ा होता है तो सारे यूनाइट हो जाते हैं। सो उन लोगों की एक एफर्ट है कि उन्होंने अपने कॉमन ग्राउंड्स पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया हुआ। ठीक है, आपका रिलीजन, आपकी एथनिसिटी, आपकी जैसे कहते हैं आइडियोलॉजी, वो सब मेरा है। यहाँ पर एक सवाल बनता है कि मस्जिद के अंदर जाकर ही क्या सिर्फ हम दीन सीखेंगे, वहीं पर क्या मरकज़ है उसका? हम स्कूल कॉलेज जाते हैं वहाँ पर ये चीज़ें नहीं सिखाई जाती कि रमज़ान को किस तरीके से गुजारना चाहिए? असल में मैं इसमें कहूँगा कि ये तो लिमिटेशंस हमारी तरफ से हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे ख्याल से दीन जितना है वो मस्जिद से बाहर ही है। मस्जिद तक तो आपका अल्लाह के साथ मामला है, आपने अल्लाह के लिए सर झुकाना है और वहाँ आपने अल्लाह के सामने पेश होना होता है। सहाबा रज़वान अलैहिम अजमईन को देख लें, सल्फ़ सालिहीन को देख लें, उनकी जितनी ज़िंदगी गुजरी है वो मस्जिद से बाहर ही अच्छी गुजरी। लोगों ने उनकी मस्जिद की बाहर की ज़िंदगी को ही देख के उनकी तरफ मुतवज्जे हुए हैं। किसी ने मेरे ख्याल से कोई हज़रत खालिद बिन वलीद मस्जिद नबवी में पहचान नहीं बनी, उनकी पहचान बनी जब वो जंग के मैदानों में उतरे हैं। आई डोंट रिमेंबर कि स्कूल के बाद किसी ने रमज़ान किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जहाँ से मैं गुजरा हूँ उसने कभी बताया हो इस हवाले से। असल में वो ये है ना कि प्रायोरिटी, जैसे आप कहते हैं हम जिस मिलेनियल एज से गुजर के आए हैं, ठीक है, और आपको मेरा स्कूल भी कॉमन था, थोड़ा कुछ बेहतर था उधर, ठीक है, तो उधर जो फोकस था ना पेरेंट्स का भी, वो दौर था कि जब इस पर बात ही नहीं होती थी कि पेरेंट्स ने बच्चों को टाइम देना। उस टाइम पे पेरेंट्स की प्रायोरिटी क्या होती थी? हम बच्चे को रोटी दे रहे हैं, बच्चे को साफ कपड़े दे रहे हैं, सब देते हैं, ये है ना, ठीक है। फिर होते होते वो टाइम आया कि हमारा स्कूल का टाइम 1 बजे था, अब बच्चे के स्कूल का टाइम 6 बजे तक चला गया, 6-7 बजे तक माइट भी, मैम ने भी एक्सपीरियंस किया। और ख़ास तौर पे जो मेन स्ट्रीम सिटीज़ हैं पाकिस्तान की, आप वहाँ देखेंगे कि बच्चे बिल्कुल उनके हवाले हो गए। वो क्या कह रहे हैं जी, अब स्कूल ही तरबियत करें, ठीक है। अब यहाँ पे स्कूल पर हम कोई बर्डन फेंक रहे हैं क्योंकि हम ब्लेम गेम के क्योंकि तो आदी हैं कि उसने गलत किया, उसने गलत किया, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं ले रहा। तो जहाँ आपने मस्जिद की बात की, मस्जिद का एक अपना रोल है। जो आपने कहा कि मोहल्ले का, अब हमें याद है हम मोहल्ले के जैसे कहते चलते फिरते एक बुज़ुर्ग से भी जो है वो हमें पकड़ के समझाते थे। मुझे अच्छे से याद है ज़िंदगी में, मुझे पहली दफ़ा एक बुज़ुर्ग ने जो है ज़िंदगी बताया कि बेटा किसी को सलाम करते तो 2 हाथ से करते। अच्छा वो जहन में बैठी हुई, वो घर में नहीं सुना था, वो बाहर एक बुजुर्ग से सुना था कि बेटा 2 हाथ से। मुझे नमाज में खड़े होने का, सफ़ में खड़े होने का एक बुजुर्ग ने तरीका बताया था कि बेटा आप सफ़ कैसे नहीं टूटेगी आपकी, आपका मेरा पैर कैसे मिलेगा। तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी। अब क्या है कि पेरेंट्स ने भी कुछ इसमें एक रोल ये किया कि आपने मेरे बच्चे को कैसे कह दिया। हाँ बिल्कुल, ठीक है, आप कौन होते हैं, मतलब चचा ताया कोई भी देख ले वो कुछ नहीं कह सकता। ठीक है, अकीला साहिबा जैसे गुफ्तगू जारी है, हम देखते हैं कि जैसे नजम ने भी बात की कि एक सब्जेक्ट भी होता था नाजरे का, और कुरान की पूरी क्लास एक अलग होती थी टाइम टेबल में, और बच्चों को बुलाया जाता था, उसमें सिखाई जाती थी, कलमे याद कराए जाते थे। वो अब सब्जेक्ट भी माइनस हो गया है। फिर एक मिलाद का एहतमाम किया जाता था, साल में एक बार ज़रूर स्कूल्स में होता था। ये जो एक्टिविटीज़ लेस कर दी गई हैं, क्या समझती हैं आप, इसकी क्या रीज़न है? देखिए अभी भी स्कूल में इस्लामियात का सब्जेक्ट तो पढ़ाया जा रहा है और उसमें जो करिकुलम है उसको भी रिवाइज़ किया गया है, और तकरीबन हर हुकूमत जो हमारी आती है वो इस करिकुलम को दोबारा से देखती है, पूरा कोर्स का जायज़ा लिया जाता है, सब सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट को बिठाया जाता है और उनकी राय से उसको जो दौरे हाज़िर के तकाज़े हैं उससे मुंतबिक करने की कोशिश की जाती है।
जहाँ तक सवाल है कि स्कूलों में ये एक्टिविटीज़ कम हो गई हैं, तो इस पे भी मैं यही कहूँगी कि ऐसा नहीं है। आप ऐवान सदर से लेके स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पे भी जाएं, मिलाद की महफिलें होती हैं, बल्कि अब तो बाकायदा नात गोई का फ़न के तौर पे सिखाया जाता है कि आपने नात पढ़नी कैसे है। ऐसी बहुत सारी डॉक्टर साहब, कौन से स्कूल्स की आप बात कर रही हैं? जी, ये एक इंस्टीट्यूशंस हैं, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस प्राइवेटली खुले हुए हैं जो कि नात भी पढ़ना सिखाते हैं और जो मिलाद के इंडिपेंडेंटली जो इस पे फोकस कर रहे हैं, इंडिपेंडेंटली कर रहे हैं। लेकिन एक जो हमारा स्कूल है, जो स्कूल सिस्टम है उसमें भी जो ख़वातीन असातिज़ा हैं, जो क्योंकि मैं ज़्यादातर मेरा ख़वातीन के जो तालीमी इदारे हैं उनसे ताल्लुक़ रहा है, तो वो यकीनन उस पर तवज्जो देते हैं। अलबत्ता जब आप यूनिवर्सिटी लेवल पे जाते हैं तो वहाँ पे क्योंकि आपको एक ओपन एक स्पेस दी जाती है कि जहाँ पे आप कुछ भी कर सकें, तो वहाँ पे भी हर मकतबा फ़िक्र के जिस तरफ बच्चे का रुझान होता है वो उस तरफ ज़रूर जाता है। तो मैं सूरत हाल जो है वो उसको बहुत गंभीर बना के नहीं पेश करना चाहती। मैं ये बताना चाहती हूँ कि पॉजिटिव रहें। हमारी एक आदत बन चुकी है कि हम अच्छी चीज़ों को सराहते नहीं हैं। हम माशरे की एक जो बुरी से बुरी चीज़ है वो पेश करने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है, पॉजिटिव भी चीज़ें हैं लोगों में। जैसे अब हम अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह हिजाब का रुझान बढ़ा है, पहले नहीं होता था। इसी तरह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद हमें मीडिया पे भी नज़र ना आए लेकिन माशरे के अंदर मौजूद। डॉक्टर साहब, एक और पहलू पे ज़रा गुफ्तगू कीजिएगा, रमज़ान का वक्त की अहमियत के साथ कितना ताल्लुक़ है और पंक्चुअलिटी कितनी आपके अंदर लाता है कि जो सहर व अफ्तार के औकात है, नमाज का, तरावी का एहतमाम, ये सब चीज़ों से पंक्चुअलिटी और वक्त की अहमियत को कितना आप समझते हैं? बिल्कुल, देखिए जैसे कि अभी भी जब हम मुख्तलिफ कोर्सेज़ करते हैं, अब ये AI के दौर की बात हो रही है, तो उसमें रिफ़्रेशिंग कोर्सेज़ साथ साथ होते हैं जो असातिज़ा के लिए और दीगर उलूम के माहिरीन के लिए होते हैं। तो मैं समझती हूँ कि हमारा जो दीन इस्लाम आफाकी दीन है उसने इंसान की तरबियत के लिए ये एक रिफ़्रेशिंग कोर्स के तौर पे रखा है ताकि आप माशरे के जो बुनियादी इक़दार अखलाकियात हैं उसको ना भूलें। देखें कुरान पाक की आप कोई सी भी आयत उठा के देख लें, वो तीन मौज़ूआत पे का अहाता करती है, जिसमें सबसे पहले इबादत हैं या ईमानियात हैं या मुआमलात हैं। ये तीन चीज़ें हैं। तो इन तीनों को मेरा ख्याल है लेके चलने के लिए रमज़ान का जो महीना है वो इसलिए रखा गया है कि ताकि हम इन तीनों को समझें और उसको अपनी ज़िंदगियों के मुताबिक कोई भी दौर हो, चाहे वो पुराना दौर है, नया दौर है या आने वाला दौर है, उसके मुताबिक ढालने की कोशिश करें। उसामा साहब, हमारे वक्त में हमारे जो वालिदैन थे उन्होंने हमारी आदत इस तरह बनाई कि पहले हमें आधा रोज़ा रखवाना शुरू किया, फिर उसके बाद हम टेम्पो में आए। अब के वालिदैन बड़े कंसर्न होते हैं हमारा बच्चा बीमार हो जाएगा। ये जो आदत वालिदैन ही नहीं डाल रहे बच्चों में, वालिदैन की तरबियत के हवाले से क्या? अच्छा, मैं पॉइंट वहाँ से कंटिन्यू करूँगा जैसे मैं डॉक्टर अकीला साहब से एग्री करूँगा कि इवेंट्स हो रहे हैं, सो मैं इसको इस तरह से शॉर्ट करूँगा, सेलिब्रेशंस आर लाइक एवरीवेयर बट नो एक्शनेबल्स, विद नो एक्शनेबल्स। मतलब इवेंट होता है, इवेंट का इख्तिताम होता है सुब्हानकल्लाह व हम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक, और उसके बाद कोई जैसे कहते हैं टेक अवेज नहीं है। तो मेरे ख्याल से जो सेलिब्रेशंस हो रही है ना, उनके टेक अवेज पे अगर तवज्जो दे दी जाए, अगर रबीउल अव्वल का महीना आता है तो 1 से लेके 29 या 30 तारीख तक अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाकी पहलू को, जैसे एक हमने बड़ा अच्छा कैंपेन और स्कूल से बड़ा हमें मोटिवेट किया, हमने कैंपेन शुरू की थी, अखलाक को अच्छा करना होगा, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमूना बनना होगा, एंड दैट वाज द कैंपेन वी वर गोइंग टू स्कूल्स। हमने सिर्फ उनमें 6 कैरेक्टर्स बताए कि ये आपके अंदर आने चाहिए, ठीक है। आपको कुछ एक्शनेबल्स देंगे तो बच्चा करेगा। जैसे आपकी बात पे चलता हूँ, देखिए पेरेंट्स अगर इस तरह से कर रहे हैं तो उसमें यह है कि, और अच्छा, ये आपको मैं एक बताऊँ कि बहुत अजीब था, मैं समझता कि शहरों में माहौल है लेकिन देहात में इससे बदतरीन हालात हैं। अच्छा, अगर आप देही इलाकों में चले जाएँ तो वहाँ तो लोग जिसे कहते हैं ना रोज़े का पता है, ना उठने का पता है, ना करने का पता, मतलब मैं तो वहाँ जाके ज़्यादा परेशान हो गया, ठीक है। अच्छा, और अगर किसी ने रोज़ा रख भी लिया तो वो जैसे कहते हैं घर के लिए अजाब ही बना दिया, और मेरा रोज़ा मन तंग ना करियो, मतलब हम रोज़े के साथ भी बहुत सी, और जैसे कहते हैं हमें भी याद, हमारे टाइम पे तो ऐसा नहीं था, बट विद टाइम व्हेन आई रीच टू द यूनिवर्सिटी एंड अभी मैं स्टूडेंट्स हैं, पेपर्स कहते हैं सर वो फिर पेपर्स वाले रोज़ों की क़ज़ा फिर हम कैसे रख सकते हैं, तो मैंने कहा कौन सा तुम लोगों ने यहाँ जैसे कहते हैं तमाम का फार्मूला बनाना है, सही बात, पेपर देना है, चले जाना है, ठीक है। असल में प्रॉब्लम क्या हुई, व्हेन यू प्रायोरिटाइज द मटेरियल्स ऑन योर डिवाइन मैसेज,
दैट हैपन्स। अगर आप बच्चे को एक पेपर को इतना इंपॉर्टेंट बना दोगे, ठीक है, मैं बात करूंगा ज़िंदगी में एक वाक़या जिसने हमें ना, हमारे वालिद साहब ने हम पे चेक रखा था, अगर हम मस्जिद नहीं जाते थे तो घर में खाना नहीं मिलता था। एक दिन ऐसा हुआ, मैच खेल रहे, चले गए, घर पहुंचे, अब्बू को रिपोर्ट पहुंची मस्जिद से कि बच्चे आज नहीं, अम्मी ने कहा खाना नहीं देगा। अच्छा, अम्मी के कहीं मुंह से निकला कि अपने ही बच्चे हैं, तो अब्बू ने बड़े जज्बात से कहा कि जो अपने अल्लाह के नहीं है वो तुम्हारे कैसे हैं? अपने पैदा करने वाले के साथ इनका ताल्लुक नहीं तो तुम्हारे साथ कैसे ताल्लुक है? वो लफ्ज़ यकीन माने ज़िंदगी भर वालिद साहब ने, मेरे वालिद साहब ने, मैं कहूँ कि अगर मेरे दीन पे चलना, क्योंकि अब मैं मदरसे की एजुकेशन से आप स्कूल में जा रहे हैं, बड़ा फैसिनेट करता है। अच्छा, फिर आप एलियन भी महसूस करते हैं, यार अच्छा मैं आया हूँ तो ये, फिर अच्छा आप उनके रंग में ढलने की कोशिश भी करते हैं, ठीक है। मैं भी गाना शाना जो स्कूल में गाया करता सिरे से, क्या ये मुझे समझे कि मैं इनका अपना ही हूँ, ठीक है। शायद वालिद साहब का वो रोल था कि वालिद साहब ने मुझे फील करवाया कि बेटा इन सब की ज़ाहिरी ज़िंदगी, और आपने जो कुरान की एक आयत पढ़ी हुई है, ये जितना आप बस्ता उठाते हो ना, इसके मुकाबले में कुरान की एक आयत नहीं है, ठीक है। ये एक कुरान की आयत के मुकाबले पर नहीं पहुंच सकते ये सारे आपके सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो बेटा इसकी कदर करना। वो पेरेंट्स जब आपको प्रायोरिटाइज करते हैं तो उसमें ये कि वो पेरेंट्स भी इस फेज से नहीं गुजरे हैं। तो अभी सिर्फ क्या है कि सोसाइटी में, जहाँ मैडम ने कहा, मैं इनसे एग्री करूँगा कि जहाँ हम डिस्कस करते हैं, मसाइल को डिस्कस करते हैं, अब वो टाइम है कि हम हल की तरफ जो है, वो कहते हैं इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। डॉक्टर साहिबा, रमज़ान का जो फोकस है वो है एक रिकॉल हर किसी के लिए, और वालिदैन या जो बच्चे शऊर जिनको आ रहा है वो इस चीज़ को समझ लें कि जो रैट रेस है, इसके अंदर हम लोग पढ़ के हमें शायद जो है वो कामयाबी जिसको हम तसव्वुर कर रहे हैं वो भी है कामयाबी, यकीनी तौर पर आप किसी मकाम पे पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर आपने एक अच्छा इंसान नहीं बने, ठीक है, आपने तरबियत का अंसर जो है वो नहीं आया, तो फिर क्या आपने अचीव किया? इफ़ यू आर पायलट, डॉक्टर, इंजीनियर, आप घर वालों के साथ रवैया नहीं सही रख सकते, आप जिस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं आपको उसके बारे में कोई इल्म नहीं है, तो डू यू रियली थिंक कि दैट इज़ द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ सक्सेस? आपने बहुत अच्छे पॉइंट की तरफ इशारा किया है और बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है। मैं इनकी बात को लेके आगे चलूँगी। इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से, बड़े अच्छे पैराए में बताया। असल में मसला ये है कि मैं जब अपने बच्चों को पढ़ाती हूँ या अपने स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट करती हूँ तो मैं उन्हें बताती हूँ कि इंसान किस चीज़ से कैसे बना है। इंसान जिस्म और रूह, दो चीज़ों का मजमूआ है। मैं बताती हूँ उनको कि फॉर योर हेल्थ फूड इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। आपकी फ़िज़िकल ग्रोथ के लिए, हेल्थ के लिए फूड जो है, न्यूट्रिशन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन रूह के लिए आप क्या कर रहे हैं? रूह के लिए इबादत है, ये इबादत हैं। ये सिर्फ 5 वक्त की नमाज नहीं है, ये सिर्फ रोज़ा नहीं है, ये सिर्फ दीगर इबादत, ज़कात नहीं है, ये डिफरेंट तरह की इबादत हैं, वर्शिप्स हैं। ये वर्शिप्स आपकी रूह की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ फ़िज़िकल ग्रोथ पे तवज्जो देंगे, जिस्म पे तवज्जो देंगे और अपनी रूह की ग्रोथ पे तवज्जो नहीं देंगे तो आपकी पर्सनैलिटीज़ इम्बैलेंस हो जाएंगी, और वो इम्बैलेंस आपको माशरे में अब नज़र आ रहा है। तो ये एक फिलोसफिकल एस्पेक्ट है इसका। इतना ज़्यादा हो चुका है जी, बिल्कुल वो वाइड होता जा रहा है ना, वो गैप। उसकी रीज़न देखें, बहुत सारे फैक्टर्स हैं ना। सोशल मीडिया है, वालिदैन अपने, क्योंकि एक मटेरियलिस्टिक लाइफ के लिए कंपटीशन है, कमाई में लगे हैं, या उनको वो टाइम नहीं दे पा रहे जितना देते थे, या वो जो हमने सोसाइटी में गैप, जैसे आपने जिक्र किया कि आपने मेरे बच्चे को क्यों कह दिया, बुज़ुर्गों की वो अहमियत नहीं रही, वो उसको हम दिन ब दिन ख़त्म करते जा रहे हैं, हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम टूट रहा है। तो ये जो फैक्टर्स हैं इनको हमें, और मगरिब जो है दोबारा इस तरह वापस आ रहा है। मैं यूरोप में रही हूँ, मेरे साथ जो पड़ोस में जो घर था वहाँ पे भी सब लोग ख़राब नहीं। वो 9 बजे जब उनके बच्चे डिनर के लिए आते थे, अंग्रेज़ थी वो, तो उनका सबसे पहले काम था कि वो मोबाइल फ़ोन जमा कराते थे मदर को। मतलब वो लोग भी जहाँ अपने बच्चों की तरबियत के लिए वो कंसर्न हैं और वो ये प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। हम यहाँ पे जो है हम उनको ब्लाइंडली हमें फॉलो नहीं करना चाहिए। हमारी जो सोसाइटी के सुनहरी असूल हैं उनको संभाल के रखें, और उनकी जो सोसाइटी में आपको अच्छी चीज़ें नज़र आ रही हैं उनको ले के चलें, लेकिन उसको अपने कल्चर के मुताबिक, अपनी मज़हब के मुताबिक ढाल के चलें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर। जैसे उसामा साहब ने भी बात की ना कि जेन ज़ी जो है आजकल की, वो बहाने भी ढूंढती है। जैसे उन्होंने कहा कि पेपर्स के लिए उन्होंने कहा कि रोज़ा बाद में रख सकते हैं। मेरी भी एक राय थी कि ये जो छुट्टियां होती हैं गर्मियों की, ये क्यों ना रमज़ान मुबारक में दी जाए। अच्छा, एक और छोटी सी चीज़ करूँगा, जो हम बात करें ना तरबियत की,
आपको सक्सेस ओरिएंटेशन अपनी जनरेशन की चेंज करनी होगी। वो कुरान के मुताबिक जो अल्लाह कह रहा है, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार, जो आग से बच गया, अवदखुलल जन्नह फ़क़द फ़ाज़, वो कामयाब हो गया। यानी आपको कामयाबी की, और दुनिया में अल्लाह ने कामयाबी का क़द अफ़लह मन तज़क्का, कामयाब हो शख्स जिसने पाकी इख्तियार की, यानी वो अखलाक में आली हुआ। तो मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है, जो मैं यूथ के साथ इंटरेक्ट करता हूँ, तो वहाँ सक्सेस ओरिएंटेशन जो है ना, जहाँ वो लग्जरी कार, वो एंड्रयू टेट और ऐसे लोगों को सुन के कुछ बन रहे हैं, और बच्चों को डायरेक्शन दें तो वो चलते हैं। मेरे स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं। ऐसे ही बहुत शुक्रिया डॉक्टर अकीला आसिफ साहिबा आपका, बहुत शुक्रिया सैयद उसामा जावेद चतराई साहब आपका। ख़वातीन हज़ार फुरक़ान रमज़ान का सिलसिला जारी है, हमारे साथ रहे। से आपको कहेंगे खुश आमदीद। और आज का मौजू हमारा बहुत खूबसूरत और अहम मौजू है, सब्र और बर्दाश्त। पूरा दिन हम रोज़ा रखते हैं, भूखे प्यासे रहते हैं, सब्र करते हैं, बर्दाश्त करते हैं, अपने नफ्स पर काबू पाते हैं, अपनी ख्वाहिशात को रोकते हैं। ये सब हमें सब्र और बर्दाश्त सिखाने के लिए है कि किस तरह अपने गुस्से पर काबू पाना है, अपनी ख्वाहिशात को रोकना है, अपने आप को हलाल चीज़ से रोकना है कि आप उसके बाद फिर पूरा 11 महीना एटलीस्ट प्रैक्टिस कर सकें कि आप किसी हराम चीज़ में ना पड़ सकें। और सब्र वो सिफ्त है जो मोमिन की पहचान भी है, जो ईमान की ताकत भी है। और रमज़ान का असल अगर आप कहें कि पैगाम है या सबक है, वो भी यही है। और सबसे बड़ी बात कि अल्लाह ताला ने खुद ये फरमा दी है कि इन्नल्लाह मास्साबिरीन, कि बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और रमज़ान हमें सिखाता है कि कोई भी तल्ख बात कर दे तो उसे माफ़ कर दो, अगर आपका दिल दुख जाए तो दुआ करो, कोई गलती कर दे तो उसको माफ़ कर दो। ये सारी प्रैक्टिसेस हमें सब्र ही सिखाता है। और कुछ लोग समझते हैं कि हम सब्र कर रहे हैं तो ये हमारी कमज़ोरी है, बल्कि उनको ये समझना चाहिए कि सब्र तो अंदर की एक ताकत है। और जो बर्दाश्त है, वो लोग समझते हैं कि शायद हम हार मान गए हैं इसलिए हम बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन ये बेसिकली किरदार की भी जीत है। और अल्लाह ताला ने ये भी फरमाया है कि बेशक सब्र करने वालों को बेहिसाब अजर भी दिया जाएगा। इसी हवाले से एक वाक़या भी है सब्र की। जब हम बात करते हैं तो बहुत सारी इस्लामिक हिस्ट्री में हमें कुछ वाक़यात मिलते हैं, उसमें एक वाक़या जिसका जिक्र मैं करना चाहूँगी, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की मिसाल हम देते हैं, सब्र की मिसाल, कि एक मालदार नबी हैं और सेहतमंद नबी हैं, उनके पास सेहत भी है, औलाद भी है, माल भी है। अल्लाह ने बेइंतहा रहमतों से, नेमतों से उनको नवाजा, लेकिन फिर उन पर आजमाइश आई। अल्लाह ने औलाद भी दुनिया से रुखसत कर दी, माल भी ले लिया और उनको बीमारी में भी मुब्तला कर दिया। और रिवायत में ये आता है कि इस कदर वो बीमार हो गए कि लोगों ने भी उनसे दूरी इख्तियार कर ली और उनको अपनी बस्ती से बाहर भी रहना पड़ा। लेकिन ये सारी चीज़ें अगर हम सोचते हैं कि ये सब चीज़ें हमारे साथ हों, तो सबसे पहली चीज़ हम क्या करेंगे कि हमारे साथ ही क्यों, हम शिकवा करेंगे अल्लाह से कि अल्लाह ताला ये हमारे साथ ही क्यों हो रहा है, या शायद अल्लाह की नाराज़गी है इस वजह से ये हमारे साथ हो रहा है। और हम फ़ौरन शिकवे, शिकायत, गिले शुरू कर देते हैं, रोना धोना शुरू कर देते हैं। लेकिन हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फरियाद भी की तो किस अंदाज में की कि ए मेरे रब, मुझे तकलीफ़ पहुँची है और तू सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है। ये कितनी खूबसूरत अल्फाज या कितनी खूबसूरत अंदाज में उन्होंने शिकवा भी किया, तो अल्लाह से इस तरह किया कि तू ही रहम करने वाला है। बेशक मैं बीमार हूँ और तकलीफ़ में हूँ, लेकिन उसके बाद ये उनका यकीन है कि अल्लाह कामिल है, अल्लाह ही सब कुछ देने वाला है। और ये सब्र बर्दाश्त की एक बेहतरीन मिसाल है। और फिर देखिए कि अल्लाह क्या फरमाता है। अल्लाह कहता है और हमने उनकी दुआ कबूल की, उनकी तकलीफ़ को भी दूर कर दिया, और फिर अल्लाह ने उनको सेहत भी दी, औलाद से भी दोबारा नवाजा और माल भी दोबारा अता किया। तो ये वो सब्र की मिसालें हैं जो हमें इस्लामी हिस्ट्री से मिलती हैं कि हमें भी अपनी ज़िंदगी में अपनाना चाहिए। ख़वातीन हज़रात, कुरान में बेशुमार जगहों पे सूरह आल इमरान में, सूरह बकरा में, सूरह ज़ुमर जिनका ये हवाला दे रही थी, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नमा युवफ़्फ़िस्साबिरून अजरहुम बिग़ैरि हिसाब, के सब्र करने वालों को बेहिसाब जो है वो अजर दिया जाएगा। और अहादीस की रोशनी में भी हमें बहुत देखने को मिलता है सब्र की तलकीन के हवाले से। इसी पर गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ उलमा हज़रात मौजूद हैं। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है जनाब मुफ्ती मोहम्मद अली कुरैशी
साहब। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, खैरियत से हैं आप? खैरियत से हैं, अल्लाह का शुक्र है, आप ठीक हैं? और हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं जनाब अल्लामा सैयद अमजद हुसैन शाह नकवी साहब। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब, खैरियत से हैं आप? ठीक हैं, सलामत रहें। मुफ्ती साहब, गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। ईमान ने जिस तरीके से रेफरेंसेस कोट किए हैं, वाक़यात, पैगम्बर का वाक़या हज़रत अबू अय्यूब अंसारी का हमारे सामने बिल्कुल आता है, ठीक है। फिर उसके अलावा हम लोग देखते हैं तो कुरान में बेशुमार जगहों पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं। कुरान और हदीस की रोशनी में ज़रा सब्र को जो है ना वो फरमाइएगा। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। आज सब्र के हवाले से नाज़रीन व नाज़िरात गुफ्तगू ये हज़रात फरमा रहे हैं। रमज़ानुल मुबारक के कई नाम हैं, सिफ़ाती नाम, तो उनमें से एक नाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इसके लिए मुंतखब फरमाया वह हुआ शहरुस सब्र, कि ये सब्र का महीना है। और यकीन जानिए पूरा दिन आम लोगों पर नहीं, एक मज़दूर पर, जो कोई आदमी ऐसा कोई स्ट्रगल करता हो, एक तंदूर वाला है या कोई और है, तो वो जो काम करता है असल पता तो उससे चलता है। और फिर जब वो प्यास को बर्दाश्त करता है, फिर जब वो भूख को बर्दाश्त करता है, या रमज़ानुल मुबारक में कोई किसी पर बेजा गुस्सा हो जाए, कुछ भी हो जाए। कल रात को मैं एक वाक़या पढ़ रहा था कि सऊदी अरब में दो गाड़ियों वाले कहीं आपस में टकरा गए, ठीक है। तो जब वो टकराए तो एक बाहर उतरा और उसने बाहर उतर कर उसने बर्दाश्त किया और उसने दूसरे को कहा आप कैसे हैं। ये यूके फिर अखबार में भी ये वाक़या छपा, ठीक है। उसने कहा मैं ठीक हूँ, फिर उसने कहा आप कैसे हैं, उन्होंने कहा मैं भी ठीक हूँ। इतने में मगरिब की अजान हो रही थी, वो दोनों जनाब नमाज में मशगूल हो गए। तो नमाज के बारे में आता इन्न सलात तन्हा अनिल फ़ाहशाइ वल मुनकर, नमाज तो इंसान को बेहयाई और बुरे काम, लड़ाई भी उसी में है, तो रोकती है। तो दोनों जो है वो शेर व शकर हो गए। तो मतलब ये है कि रमज़ानुल मुबारक में एहसास उन लोगों को है। अब कुरान और हदीस की तरफ आते हैं। अल्लामा आलूसी रहमहुल्लाह ने लिखा है कि सब्र को तीन हिस्सों में वो तकसीम फरमाते हैं। एक सब्र अल ताआत है, यानी इबादत पर सब्र करना। नमाज के लिए उठने को जी नहीं चाहता, सर्दी का मौसम है, सर्द पानी से वज़ू करने को जी नहीं चाहता, लेकिन वो सब्र का मुजाहरा करता है, वज़ू करता है, और वो लोग करते हैं। और एक है सब्र अनिल मासी, गुनाहों से अपने आप को क्या करना, बचाना। जगह जगह लोग मुझे और आपको गुनाह की तरफ जी कई मरतबा, लेकिन आप अपने आप को वापस खींचते हैं। ये सब्र अनिल मासी है। और एक जो है वो सब्र अनिल मसाइब है, कि मुसीबतों के ऊपर क्या करना, सब्र करना। मैं एक वाकया अर्ज करता हूँ, यानी ख़वातीन के लिए भी, कि एक खातून है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, उसे मिर्गी के दौरे पड़ते थे। और मिर्गी के दौरे जिस शख्स को पड़ जाए बस वो फिर उसको पता नहीं चलता। वो आका के यहाँ आई और अर्ज़ करने लगी, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे लिए दुआ फरमाएं कि अल्लाह करीम जो है मुझे इस मर्ज़ से छुटकारा दे दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आप इस पर सब्र करें, इसके बदले में आपको अल्लाह करीम जन्नत देगा। वो खातून अर्ज़ करने लगी मैं इस पर सब्र कर लेती हूँ, लेकिन आका सिर्फ एक बात ज़रूर दुआ में मेरे लिए शामिल फरमा दें कि मिर्गी के वक्त में जब ये दौरा मुझे पड़े मेरा सतर न खुले। आका ने फरमाया ये ठीक है। तो देखिए उस खातून ने उस पर सब्र किया। इसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मक्की दौर है ये सब्र का दौर है। फिर ये भी देखिए कि मक्का मुकर्रमा में हज़रत सुमैया पर जुल्म हो रहा है, आले यासिर पर जुल्म हो रहा है, हज़रत बिलाल पर जुल्म, बिलाल हबशी पर जुल्म हो रहा है, आज गज़ा के लोगों पर जुल्म हो रहा है, मकबूजा कश्मीर के मुसलमान भाइयों पर। ये सब्र है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत बिलाल के आगे से गुजरते हैं और हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को तलकीन करते हैं, आज आप सब्र करें, फ्यूचर आपका है। इकबाल मरहूम फरमाते हैं, इकबाल किसके इश्क का ये फैज़ आम है। इकबाल किसके, आका की तरफ इशारा कर रहे हैं, इकबाल किसके इश्क का ये फैज़ आम है, रूमी तबाह हुआ हबशी को दवाम है। कि रूमी का आज कोई नाम नहीं लेता। मैं मुख्तसर कर लेता हूँ कि सब्र करने वाले जो लोग हैं ये तो दाएं हाथ वाले लोग हैं। अल्लाह करीम बार बार मुख्तसर सूरतें आयात वले रब्बिका फस्बिर,
आका को अल्लाह करीम फरमाते हैं आप अपने रब के लिए सब्र कर लिया, यानी इंसान अपने रब को राजी करने के लिए। कहीं फरमाते वहजुरहुम हजरन वस्बिर अलामा यकूलून, जो ये बातें आपसे करते हैं उस पर आप सब्र करें। वहजुरहुम हजरन जमीला, बहुत शाइस्तगी से चले जाएं, इनके साथ उलझने की ज़रूरत नहीं है। सूरतुल बलद में अल्लाह करीम फरमाते हैं कि मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए आखिरी बात, मोहतरम, घाटी के ऊपर चढ़ना मुश्किल काम होता है, ये देहाती लोग जानते हैं, यानी और प्यास भी और सब कुछ। अल्लाह करीम फरमाते हैं कुरान मजीद में फलक तहमल आक़बा वमा अदराक मल आक़बा फ़क्कु रक़बतिन औ इत्आमुन फ़ी यौमिन ज़ी मस्ग़बा यतीमन ज़ा मक़रबा औ मिस्कीनन ज़ा मतरबा सुम्मा कान मिनल लज़ीना आमनू व तवासौ बिस्सब्र। जो सब्र, एक दूसरे को सब्र की तलक़ीन करते हैं, ये घाटी वाले हैं, ये कामयाब लोग हैं। व तवासौ बिल मरहमा, फिर फरमाया उलाइका अस्हाबुल मैमना, ये दाएं हाथ वाले हैं, क़यामत के दिन इनको दाएं हाथ में अमालनामा दिया जाएगा। तो रमज़ानुल मुबारक में मैं ये गुजारिश करूँगा नाज़रीन और नाज़िरात से कि कई मराहिल ऐसे आते हैं, रोज़े को सामने रखना चाहिए और सब्र को भी सामने रखना चाहिए। बहुत सही है। नकवी साहब, जैसे अल्लामा साहब मुफ्ती साहब ने भी बड़ी खूबसूरत बात की है, मुझे ये बताइएगा कि सब्र और बर्दाश्त दो अलग चीज़ें हैं, या हम इनको ऐसा कह सकते हैं कि बर्दाश्त जो है वो इंसानी पैमाना है और जो सब्र है वो आसमानी पैमाना है, कि बर्दाश्त में बॉल आप अपने कोर्ट पे रखते हैं और सब्र में बॉल आप अल्लाह की कोर्ट में फेंक देते हैं कि वही फैसला करने वाला है। ये क्लैरिफाई कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला आलिहा। पहले तो हम ये देख लेते हैं कि सब्र हमने करना किस किस चीज़ पर है। ठीक है। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त है वला नबलुवन्नकुम बिशैइम मिनल खौफ़ि वल जूइ व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात। अल्लाह फरमाता है मैं तुम्हें आज़माऊँगा खौफ के ज़रिए, मौत के ज़रिए, माल की कमी के ज़रिए, जान के ज़रिए और फलों में कमी के ज़रिए। वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, और वो लोग कि जिन पर मुसीबतें आती हैं तो वो ये कहते हैं कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि हम तेरी तरफ से हैं और हमने तेरी तरफ ही लौट कर जाना है। उलाइका अलैहिम सलावातुम मिर रब्बिहिम वरहमा। तो अल्लाह कहता है इन लोगों को कि जो मुश्किलात में भी ये कहते हैं कि अल्लाह की तरफ से आए हैं, अल्लाह की तरफ ही लौट के हमने जाना है, तो इन लोगों के लिए खुशखबरी है ए पैगंबर कि रहमत मुझ खुदा की भी इन लोगों के लिए है और मेरी इनायत भी इन्हीं लोगों के लिए है। मतलब ये हुआ कि अगर बीमारी आ गई है तो आपने सब्र करना है, ये अल्लाह आपसे तकाजा कर रहा है। माल की कमी है तो आपने सब्र करना है, ये भी तकाजा है। उसके अलावा जान में कोई मसला बन जाता है, जान चली जाती है, कुछ भी होता है, इस पे जो सब्र करेगा अल्लाह उस पे अल्लाह वो अल्लाह की रहमत में होगा, अल्लाह की इनायत में होगा। अब सब्र है दो किस्म का। मौलाना साहब किबला ने भी इशारा फरमाया, अमीरुल मोमिनीन का एक इरशाद है अस्सब्रु सब्रान, सब्र दो किस्म का होता है। कौन सा? अस्सब्रु, एक सब्र वो है अस्सब्रु मिनल बलाए हसनुन व जमील, एक सब्र वो है कि जो मुसीबतों पर किया जाता है ये अच्छा है, मुसीबतों पर जो किया जाता है ये अच्छा है। दूसरा कौन है? व आसनु मिन हो, दूसरा सब्र वो है कि सब्रुन अनिल मुआरिम, के गुनाहों से बचने पर जो सब्र करता है ये उससे भी ज़्यादा अच्छा है। एक तो ये है कि आप पे मुसीबत आ गई, आपने सब्र कर लिया, और दूसरा ये है कि आपके सामने गुनाह है। मिसाल के तौर पे आप किसी ऑफिस में हैं और आपको कोई रिश्वत देने के लिए आ गया है, अब इस रिश्वत को ना लेना और सब्र करना ये मुसीबत पर सब्र करने से भी ज्यादा अफजल है। अब सवाल ये है कि मैं एक और बात भी, अब अगर कोई मुसीबत पर सब्र कर ले, अब अगर कोई गुनाह पर सब्र कर ले, उसका अजर क्या है? इमाम सादिक का फरमान है, इमाम फरमाते हैं मनब तोलिया मिनल मुमिनीना बेबलाए फसबर अलैहि, कि अगर कोई मोमिन मुसीबत में मुब्तला हो जाए और उस पर सब्र करे, काना लहू मिसलो अजरिन अल्फ शहीद, तो इस मुसीबत पर सब्र करने वाले को 1000 शहीद के बराबर सवाब मिलेगा। तो ये भी नेमत है। मिसाल आपके सामने एक गुनाह है और आप उस पर वो नहीं कर रहे और सब्र कर रहे हैं, अपने नफ्स पे कंट्रोल कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप भी शुहदा में शुमार होंगे। अब सब्र और बर्दाश्त में फ़र्क क्या है? एक होता है सब्र, सब्र उसे कहा जाता है कि जिसमें कोई चूं चुरा
नہ की जाए अच्छा। और अल्लाह की रज़ा को मान के खामोश रहा जाए। बर्दाश्त किसे कहते हैं कि अक्सर अगर मसूरात नाराज़ ना हो जाएं, तो मैं उन्हीं की मिसाल ये दे लूँ। पहले मैंने माजरत कर ली कि औरत जो है वो घर में अपने शोहर के साथ ज़िंदगी गुजारती है, और फिर जब बैठती हैं औरतें महल्ले की तो वो कहती हैं मैंने बड़ा सब्र किया है। कैसा सब्र है कि अपने शोहर की एक एक आदत को पूरे महल्ले में जाके उसने बयान कर दिया। इसका मतलब क्या है कि सब्र थोड़ा है, ये है बर्दाश्त। ये वो सब्र नहीं कर रही, ये वो अपने शोहर की यानी कि अपना तबीयत को बर्दाश्त कर रही है, अपनी औलाद की शिद्दत को बर्दाश्त कर रही है। तो बर्दाश्त करना जिसमें बंदा बेख्तियार हो और कुछ ना कर सके उसे बर्दाश्त कहते हैं। और सब्र कहते हैं कि जिसमें इख्तियार होने के बावजूद अल्लाह की रज़ा के लिए खामोश रहा जाए, उसे कहा जाता है सब्र। इसकी मिसाल मैं आपको दे देता हूँ। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब सब्र क्या है? अब रसूल तो मुख्तार कुल हैं कि नहीं? पूरी कायनात में हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं विलायत तकवीनिया विलायत तशरीह की, उस तरह में नहीं जाता। तो रसूल खुदा पूरी आलम यानी पूरी कुल कायनात के क्या हैं? मुख्तार कुल हैं। पैगम्बर के इख्तियार में अल्लाह ने अपनी मर्जियाँ दी हुई हैं। अब पैगम्बर मिंबर पे बैठे हैं और एक शख्स आता है और शान अक़दस से रिसालत में तौहीन करता है। तौहीन करने के बाद सहाबा कोशिश करते हैं कि इसे रोका जाए, लेकिन वो रुकता नहीं। उसकी बदकलामी, उसकी बदज़ुबानी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, लेकिन पैगंबर ने उसे कुछ भी नहीं कहा। कुछ देर के बाद सहाबा हैरान हो गए कि यार अब रसूल का यहाँ पे इख्तियार है, किसी भी सहाबी को हुक्म देते, सहाबी उठ के उसकी ज़ुबान बंदी करवा सकता था, लेकिन पैगंबर ने बर्दाश्त किया, सहाबा ने। और याद रखिएगा ये है इताअत सहाबा की, कि रसूल की इताअत सहाबा कैसे करते थे कि सहाबा के सामने रसूल की अगर कोई बदकलामी कर भी रहा है रसूल के साथ, वो इसलिए नहीं बोल रहे कि अगर हम बोलेंगे तो ये हद अदब ना हो जाए, क्योंकि रसूल ने अभी हुक्म नहीं दिया तो हुक्म रसूल के खिलाफ हम कैसे जाएं। तो वो बदकलामी करता रहा, बदजुबानी करता रहा। करने के बाद वो चला गया। चलने के बाद जब वो निकला ना मस्जिद नबी से, तो रसूल खुदा ने फरमाया कोई है जो इसकी जाके जुबान को कता कर दे। अब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में रिवायत है कि वो फिर जल्दी से मस्जिद से बाहर निकले। अब जब बाहर निकले ना, भाई जाके इसकी ज़बान को कता करूं, तो रस्ते में आते हुए अमीरुल मोमिनीन की मुलाकात हज़रत उमर फ़ारूक से होगी। तो फरमाया ऐ उमर फ़ारूक आप कहाँ जा रहे हैं? कहा एक बदबख्त आया है, एक इंसान आया जिसने शान अक़दस से रिसालत में बदकलामी की है। आप रसूल खुदा ने फरमाया है कि उसकी जाके ज़ुबान को कता कर दो। अमीरुल मोमिनीन ने कहा आप रुकिए, इसकी ज़ुबान को कता जाके मैं करता हूँ। अमीरुल मोमिनीन उस आराबी के पास चले गए और जाके कहने लगे तेरे पास खाना नहीं है, खाना खिलाऊं? तेरे पास माल नहीं है, माल दूं? उसने कहा खाने की भी ज़रूरत है, माल की ज़रूरत भी है। अमीरुल मोमिनीन ने खाना भी खिलाया, अमीरुल मोमिनीन ने माल भी दिया। अब जैसे ही उसके पास माल आया तो जिस ज़ुबान से बदकलामी कर रहा था उसी ज़ुबान से शान अक़दस से रिसालत में कसीदा पढ़ना शुरू हो गया, नात पढ़नी शुरू होगी। अब सहाबी ने आके बताया पैगम्बर को और कहा या रसूल अल्लाह आपने कहा था कि ज़ुबान कता करें, अली ने खाना खिलाया है, अली ने पैसे दिए हैं। फरमाया मैं यही चाहता था कि उसे कुछ दे के उसकी ज़ुबान को कता कर लिया जाए। इसका मतलब हुआ कि रसूल खुदा इख्तियार रखने के बावजूद, असहाब के यानी कि पूरी फौज में बैठने के बावजूद अगर बदकलामी पे सब्र कर रहे हैं तो इसे कहते हैं सब्र। फिर केबला ने एक आयत पढ़ी वस्बिर अला मा यकूलूना वहजुरहुन हजरन जमीला। ये आयत क्यों आई? ये आयत इसलिए आई कि ये जो कुफार थे ये बदकलामी करते थे, बदजुबानी करते थे, शान अक़दस से रिसालत में तौहीन करते थे। अल्लाह ने कहा ए हबीब तू इस पे सब्र कर। अब वहीं पे नबी मुकर्रम फरमा देते कि या अल्लाह इन पे अजाब नाजिल कर, तो अजाब तो हो जाता नाजिल, मलाइका आ जाते, फरिश्ते आ जाते। लेकिन अल्लाह ने क्या फरमाया कि इनकी बदकलामी पे, इनकी बदजुबानी पे सब्र कर, और सब्र करने के बाद क्या कर? ये कमाल है। सब्र करने के बाद तू इनको अपने आप से इस अंदाज से जुदा कर कि उन्हें भी कोई तकलीफ ना हो, उन्हें भी कोई दिक्कत ना हो। तो खूबसूरत अंदाज से तू इनसे जुदा हो जा। तो ये है सब्र। इसका मतलब ये हुआ कि हमें मुसीबत आए तो हमने ये सोच के उस मुसीबत पे सब्र करना है कि इसमें अल्लाह की रज़ा है। इंशाल्लाह आपके लिए आसानी पैदा। मुफ्ती साहब ये फरमाइएगा माशी दबाव, महंगाई, बेरोज़गारी, इन सब को देखते हुए जो सब्र किया जा रहा है वो सिर्फ सब्र ही है या कानूनी जद्दोजहद, कोई आपके साथ नाजायज़ मामला हो जाए उसमें कानूनी जद्दोजहद करना भी सब्र के ज़ुमरे में आता है? बहुत अहम सवाल। मेरे मोहतरम, सब्र का ये मफ़हूम कभी भी नहीं है कि आप अपना हक़ छोड़ें। जी सब्र का ये मफ़हूम कभी भी नहीं है कि जो राइट है आप उसको छोड़ दें या जुल्म पे खामोश रहें, या जुल्म पर आप क्या रहें? खामोश रहें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उनसुर अखा का ज़ालिमन व मज़लूमन, तुम जालिम भाई की भी मदद करो, मज़लूम की भी मदद करो। तो यही बात है।
मज़लूम की मदद तो सबको समझ में आ गई कि एक शख्स पर जुल्म हो रहा है, आप जाएं कहें यार इस पर क्यों जुल्म कर रहे हो, जान छोड़ा, तो जालिम की कैसे? आका ने फरमाया जो जुल्म कर रहा है उसको जुल्म से क्या कर दें, रोक दें। तो सब्र का ये मफहूम कहीं भी नहीं है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि उसके लिए वो रास्ता इख्तियार किया जाए, जैसे आका को भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वहजुरुहुम हजरन जमीला, शाइस्तगी का तरीक़ा इख्तियार किया जाए कि बजाय इसके कि मामलात और बिगड़ जाएं, सुलझाने की तरफ आ जाए, ये ज़रूरी है। बाकी जो आप हज़रत ईमान नवाज साहिब ने सवाल किया था, यानी सब्र और बर्दाश्त में एक ये बहुत ज़रूरी है कि इंसानी मुआशरे में, सोसाइटी में हालात तो इंसान पर आते रहते हैं, बस ज़ुबान पर शिकवा ना हो। ठीक है, ज़ुबान पर शिकवा ना हो। मैं इसकी एक मिसाल कुरान मजीद से देता हूँ। अक्सर ये आयत मुबारका हॉस्पिटल्स वग़ैरह में दीवारों के ऊपर लिखी होती है। ये आयत मुबारका 19वें पारे की है और सूरत अश-शुअरा की है। तो ये कुरान मजीद की जो 14 सजदे हैं ना, ये 14 सजदे ये शुअरा की वजह से हैं। वो एक लबीद शायर था, उसने कुछ अशार पढ़े, फिर ये वो। तो ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की गुफ्तगू है जिसको अल्लाह करीम नकल फरमा रहे। हज़रत इब्राहीम तौहीद के अलमबरदार हैं, तो वो फरमाते हैं। अगर हज़रत आपकी इजाज़त तो हम वक्फे की तरफ बढ़ें और वापस आएँ तो यहीं से गुफ्तगू को जो है ना वो आगे बढ़ाएंगे। ख़वातीन और हज़रात, फुरक़ान रमज़ान का सिलसिला वेलकम बैक नाज़रीन, फुरक़ान रमज़ान में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। सब्र और बर्दाश्त के हवाले से बातचीत चल रही है। मुफ्ती साहब, आप बात कर रहे थे, अपनी बात को भी कर रहा था कि बर्दाश्त भी यानी और सब्र दोनों का असील इम्तिजाज। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का एक तज़किरा कुरान करीम नकल करता है कि हज़रत इब्राहीम फरमाते अल्लज़ी हुवा युतइमुनी व यस्कीन, कि वो मेरा रब ऐसा है कि वो मुझे खिलाता भी है और पिलाता भी है। यहाँ पर हज़रत इब्राहीम अल्लाह ही की तरफ खाने की निस्बत फरमा रहे हैं और पीने की निस्बत भी फरमा रहे हैं। युतइमुनी, ये नून विकाया है या ज़मीर मुतकल्लिम मफ़ऊल भी, अरबी ग्रामर से, यानी वो मुझे खिला रहे हैं और वो रब मुझे पिला रहे हैं। लेकिन जब बीमारी की बात आ गई तो फरमाते हैं व इज़ा मरीज़ तो, जब मैं बीमार होता हूँ। ये नहीं फरमाया कि वो मुझे क्या कर रहे हैं, बीमार करा रहे हैं, बीमार कर रहे हैं, यानी बीमारी की निस्बत अल्लाह की तरफ नहीं। ये बर्दाश्त है, ये सब्र है। खामोश ए दिल, इकबाल मरहूम फरमाते हैं बड़ी महफिल में चिल्लाना नहीं अच्छा, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। तो यहाँ पर भी आप यकीन जाने बीमारी को उस तरफ नहीं लेकर गए और फिर आगे फिर फरमाया फ़हुव यशफीन, वो असल में यशफीनी, कि वो मुझे शिफा देते हैं। शिफा की निस्बत फिर अल्लाह की तरफ। और मैं सब्र के फ़वाइद नाज़रीन को बताऊँगा। अल्लाह अकबर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 साला मुशरिकीन मक्का को और अरब के लोगों को दावत दी है। सुबह भी दी है, शाम भी दी है, रात को भी दी है। एक एक के घर आप तशरीफ़ लेकर गए, सब कुछ किया। और मक्की दौर में भी, मदनी दौर में भी, हालत जंग में भी उतरे, ख़ुद तशरीफ़ ले गए बदर में, ओहद में, हुनैन में। लेकिन देख लीजिएगा, इस्लाम को जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ वो फ़तह मक्का के दिन हुआ कि आका ने फरमाया आज मैंने तुम सबको बर्दाश्त कर लिया, यानी तुम्हें माफ़ कर दिया। यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजन, लोग लश्कर दर लश्कर इस्लाम में क्या हो गए, दाखिल हो गए। और 12,000 का लश्कर आका के साथ चल पड़ा हुनैन की तरफ। मतलब ये है कि आज भी अगर हम सब्र करने पर आ जाएं तो यकीन जानिए उसका सिर्फ दुनिया से भी ताल्लुक़ नहीं है,
आखिरत के साथ। और बीमार लोगों के लिए अर्ज़ कर दूं कि बहुत सारे बीमार लोगों को क़यामत के दिन अजर मिलेगा। जैसे हदीस में आता है, अल्लाह करीम फरमाते हैं मैं जिस शख्स को बिनाई से महरूम कर दूं उसके लिए उसके बदले में जन्नत है। इसी तरीके से ये लोग जो बीमार लोग होंगे, जो सब्र करते हैं इसके ऊपर, बीमारी के ऊपर, ये कल क़यामत के दिन खुद ये ख्वाहिश का इजहार करेंगे, काश हम और बीमारियों में मुब्तला होते कि इतना कुछ हमें क्या दे रहा है, अल्लाह करीम अजर दे रहा है। तो यकीन जानिए कई मरतबा सब्र का पैमाना बीमार लोगों का लबरेज तो हो जाता है। ये आपसे एक पॉइंट मेरे जहन में आया लामा साहब, आपकी तरफ लेकर आऊँगा। थोड़ा सा टेक्निकल बात इस तरीके से है कि मुसलसल जहनी दबाव का शिकार जो लोग होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, ठीक है, अगर अब वो ये चीज़ समझ लें कि सब्र है तो एक अलग मामला है, या फिर इस्लाम तो तवाज़ुन और बैलेंस जो है वो सिखाता है, तो ये किस तरीके से फिर जो है ना मुसलसल जहनी दबाव का शिकार जो लोग हैं वो क्या इसको समझेंगे, सब्र है या फिर जो है ना उनको काम करने की ज़रूरत है उस चीज़ के ऊपर? नहीं, उस पर काम करने की ज़रूरत तो है ना, क्योंकि सब्र बाज़ औक़ात इख्तियार रखने के बावजूद भी बंदा करता है। एक तो ज़हनी दबाव है ना, तो ज़हनी दबाव में तो बहुत सारे मसाइल आते हैं। मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ, उसमें यह है कि उससे बड़ा ज़हनी दबाव मुमकिन ही नहीं किसी के ऊपर आए, लेकिन उसके बावजूद भी सब्र करना, तो ये सीरत हमें कहाँ से मिलेगी? पैगम्बर के घराने से मिलेगी। हम शक्ल पैगम्बर शहज़ादा अली अकबर, जो कि बिल्कुल हम शक्ल पैगम्बर थे, और हुसैन इब्न अली ने दुआ मांग के जनाब शहज़ादा अली अकबर को अपने रब से मांगा कि या अल्लाह, मुझे जब तक रसूल का चेहरा ना देखूं मुझे सुकून नहीं आता, मुझे ऐसा बेटा अता फरमा जो रसूल की शक्ल वाला हो, ताकि उसे देख के मैं अपने नाना की याद को ताज़ा करूँ। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुसैन इब्न अली को शहज़ादा अली अकबर अता फरमाए। शहज़ादा अली अकबर जब दुनिया में आए, शबान अब गुजर भी गया, शबान में उनकी यानी कि 11 शबान को उनकी विलादत है। वो 18 साल के थे और फिर करबला आ गई। करबला में हुसैन इब्न अली ने ज़रा भी तामुल नहीं किया कि अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान करने में ज़रा भी सोचें, हिचकिचाएं। और सबसे पहली कुर्बानी उलमाए तारीख़ ने लिखा है कि हुसैन इब्न अली ने अपने बेटे की दी, किसकी? हम शक्ल पैगम्बर अली अकबर की। अब मौला अली अकबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सीने में बर्छी लग गई, हुसैन ने सब्र किया, ये भी ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ? हसीन इब्न नबीर शहज़ादा अली अकबर के कातिल का नाम है। एक मरतबा जब बैतुल्ला पे हमला हुआ, और बैतुल्ला पे हमला होने के बाद ये भी उस यानी कि करबला के बाद जब काबा पे हमला किया गया, दीवार गिराई गई, तब अपना गिलाफ काबा को जलाया गया था, तो उस वक्त जब ये उस लश्कर में हसीन इब्न नबीर भी था जो शहज़ादा अली अकबर का कातिल था, ये भी वहाँ से भागा। जब इन्हें पसपाई हुई ना, तो ये वहाँ से भागा। भागते हुए ये मदीने के करीब से गुजरा, और मदीने के करीब एक जंगल था। जब जंगल में आए तो इसे प्यास लगी, इसे भूख लगी, ये जंगल में चल ही रहा था, जो इसे एक झोंपड़ी नज़र आई। जब ये झोंपड़ी के पास गया तो उस झोंपड़ी के अंदर एक शख्स था। इसने वहाँ पे बुलाया कि ए अरबी तू कौन है? अंदर से जो शख्स बाहर निकला वो सैयद साजिदीन थे, अली अकबर के बड़े भाई, जो कि जनाब ज़ैनब के साथ कूफा और शाम में गए थे। अब देखिएगा, अब इससे बड़ी स्ट्रेस तो कोई नहीं ना, इससे बड़ी मुसीबत तो कोई नहीं। अब शहज़ादा अली अकबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कातिल किसके दरवाजे पे? अली अकबर के भाई के दरवाजे पे। इमाम ने जब देखा ना कि मेरे भाई अली अकबर, जवान अली अकबर का कातिल है, तो इमाम ने महसूस ही नहीं उसे करार दिया कि मैंने तुझे पहचान लिया। इमाम ने कहा बैठो, प्यासा है तो पानी पी, भूखा है तो खाना खा। इमाम ने अपना बिस्तर भी दिया, पानी भी दिया, खाना भी खाया। उसने पानी भी पी लिया, खाना भी खा लिया। जब बिस्तर पे लेटा, इमाम बाहर आ गए खैमे से। उस हसीन इब्न नबीर ने सोचा, मुझे लगता है कि सज्जाद ने मुझे पहचाना नहीं। वो तो पहचान गया कि ये तो सैयद साजिदीन है। सज्जाद ने मुझे पहचाना नहीं। वो घबरा के बाहर निकला, कहीं मुझे कत्ल ना कर दे। जब ये जाने लगा ना, तो इमाम ने कहा कहाँ जा रहा है? कहा मुझे लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। तो सैयद साजिदीन ने कहा तुझे क्या लगता है कि मैंने तुझे नहीं पहचाना? तू वो है कि जिसने करबला में मेरे जवान अली अकबर के सीने में बर्छी मारी थी। तू मेरे भाई का कातिल था। कहा तो फिर आपने मुझे क्यों कत्ल नहीं किया? तो इमाम ने फरमाया करबला में हम तेरे मेहमान थे, आज तू मेरा मेहमान है। करबला में तूने वो किया जो तेरा ज़र्फ है, आज मैंने वो किया जो मेरा ज़र्फ है। तो इससे आप मुझे बताइए, भाई का कातिल सामने है, और बड़ा भाई अकबर जैसे भाई के कातिल के सामने क्या देख के सब्र करा? क्यों? अल्लाह की तालीम ये है कि आपने अपने लिए नहीं लड़ना, आपने लड़ना है तो खुदा की रज़ा के लिए लड़ना है। तो करबला में जितना भी अहले बैत नबूवत ने जंग की है, लड़े हैं, वो अल्लाह को राज़ी करने के लिए लड़े हैं। और याद रखिएगा, आपने सब्र देखना है, आपने बर्दाश्त देखनी है, तो आप करबला वालों से सीखें, आप मोहम्मद मुस्तफ़ा के घर वालों से सीखें।
علامہ صاحب جیسے آپ نے یہ بات کی ہے لیکن موسٹ آف دا ٹائم آپ صبر کرتے ہیں, نرم دل رہتے ہیں, لیکن اگلا آپ کو اپنے آپ کو زیادہ پاورفل سمجھنے لگ جاتا ہے, آپ کو بے وقوف سمجھنے لگ جاتا ہے کہ میں اسے تکلیف بھی دے رہا ہوں, دکھ بھی پہنچا رہا ہوں, لیکن یہ آگے سے جواب نہیں دے رہا, پھر وہ مزید اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. نہیں اب یہ دیکھ لیجئے نا, آپ نے جو کچھ بھی کرنا ہے وہ اللہ کے لیے کرنا ہے. اگر تو کوئی بندہ زیادتی کر رہا ہے اور آپ صبر کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی اس کی زیادتی بڑھ رہی ہے تو وہ ظلم ہے, اس پہ آپ نے بولنا ہے. ابھی یہ جو آیت ہم پڑھتے ہیں وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا, رسول خدا کو جب یہ کہا گیا کہ آپ نے صبر کرنا ہے اور بہترین طریقے سے, حسن طریقے سے آپ نے ان سے جدا ہو جانا ہے. یہ یاد رکھیے گا, علماء نے, مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ یہ آیت آیات جہاد یا آیات قتال کے مخالف نہیں ہے. آپ نے جہاں پہ بولنا ہے وہاں پہ بولنے کا اسلام نے اور شریعت نے آپ کو حکم دیا ہے. تقاضا ہے. آپ نے جب محسوس کر لیا کہ میرے سامنے والا میرے حق کو سلب کر رہا ہے اور اس کا یعنی کہ بڑھ بڑھ کے مجھ پہ حملہ کرنا یہ ظلم ہے, تو پھر آپ پہ واجب ہے کہ آپ بھی اپنا دفاع کریں. ٹھیک ہو گیا. مفتی صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو آج کل ڈیجیٹل دور چل رہا ہے اس میں آپ دیکھیں اٹینشن سپیم بھی کم ہو گیا لوگوں کا, انسٹنٹ ریلیف ہر چیز سے ملنا, انسٹنٹ گریٹیفیکیشن ہو جانا کہ بس جلد سے جلد جو ہے وہ چیزوں کا حل مل جائے. اب ایسے دور میں صبر کو پریکٹس کرنا اور اس کی جو صفت ہے وہ کس حد تک متاثر ہوئی ہے, میں چاہوں گا اس کے اوپر ذرا آپ کی ہوگی. بہت اہم سوال ہے. یعنی موجودہ دور میں ایک نوجوان کو آپ لے لیں کہ اس نوجوان بس وہ کہتا ہے مجھے 1 منٹ میں نا یورپ کا ویزا مل جائے, فار ایگزامپل, 1 منٹ میں کامیابی مل جائے, 1 منٹ میں کامیابی مل جائے, 1 منٹ میں تنخواہ بڑھ جائے, 1 منٹ میں مجھے باپ سے جو میں نے مطالبہ کیا ہے والدین سے وہ مجھے مل جائے. نہیں تو میں نے پھر ان کو کہنا میں خودکشی کر لیتا ہوں, میں فلاں کر لیتا ہوں, میں یہ کر لیتا ہوں. نہیں, دیکھیے ایسا نہیں. میں نے پہلے بھی یہ گزارش کی, آج بھی یہ گزارش کرنے لگا ہوں کہ ایک وقت مکی دور کا ہے, ایک مدنی دور کا ہے. اسی طریقے سے یہ جو نوجوان جو ہمیں سن رہے ہیں, نوجوان بچیاں جو ہمیں سن رہی ہے, کہ ایسا ہو جائے کہ یکدم سب کچھ ہو جائے, یہ مناسب نہیں ہے. اسلام میں جوئے کو کیوں حرام قرار دے دیا؟ وہ اس لیے کہ مال آپ کو 1 منٹ میں مل جاتا ہے, پھر اس کی قدر نہیں ہے. یسألونک عن الخمر والمیسر, میسر یسر سے, یسر کے معنی آسانی, کہ مال 1 منٹ میں ملتا ہے آپ کو, 1 منٹ میں آپ امیر ہو جاتے ہیں. تو جب آپ امیر ہو گئے کبھی بھی آپ اس مال کو قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے. اور ایک اسی طریقے سے میرے محترم آپ سے یہ عرض کر دوں, اللہ کریم نے زمین اور آسمانوں کو جو پیدا فرمایا تو اللہ کریم یہ بھی چاہ سکتے تھے جیسے سورہ یاسین کے آخر میں اواخر میں اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون, کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں ہو جا تو وہ چیز سامنے سے ہو جاتی ہے. تو پھر اللہ کریم نے یہ 1 ہفتہ, یہ 6 دن, یہ زمین اور آسمان کی پیدائش پر کیوں لگائے؟ فرمایا خلق خدا کے لیے تعلیم برائے خلق ہے کہ جو کام آہستہ آہستہ آپ کرو گے وہ آپ منزل پر پہنچو گے. اور پھر آخر میں ایک ہی بات عرض کر دوں, حدیث میں ہے الانات من اللہ, کاموں میں جو ٹھہراؤ ہے وہ تو اللہ کی طرف سے, اور جو جلدی ہے وہ شیطان کی طرف سے. بہت خوب, بہت خوب. کچن کا وقت ہوا جاتا ہے ناظرین, اور دیکھتے ہیں کہ آج ہماری شیف عائشہ نے کیا کیا ڈشز یا کیا کیا بن رہا ہے کچن میں, یہ تو ہمیں جا کے ہی پتہ چلے گا. جی عائشہ. اچھا جی, ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ کی خدمت میں لے کے آئی ہوں 2 ریسیپیز. ایک ہم بنائیں گے الفریڈو پاستا, اس کے ساتھ بنائیں گے اسٹرابیری سیگو. یہ ساؤتھ ایشین ڈیزرٹ ہے اور ملک اینڈ کریم بیسڈ ڈیزرٹ ہوتا ہے یہ. وہ میں آپ کو سب سے پہلے الفریڈو کے انگریڈینٹس بتاتے چلوں. اس سے پہلے میں بہت بہت شکریہ ادا کروں گی ہمارے آج کے جو انہوں نے ہمیں کچن اسپانسر کیا ہے, شازلی کچن اینڈ انٹیریئرز نے. اب ہم چلتے ہیں اپنی ریسیپی کی طرف. تو الفریڈو پاستا بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے یہ فیٹوچینی الفریڈو ہے تو یہ فیٹوچینی پاستا کو بوائل کر لیا تھا. صرف اس کو میں نے کیا کیا تھا کہ ½ پیکٹ لیا تھا اور ایک بڑے پاٹ پہ پانی ڈال کے اس کو گرم کرنے رکھا تھا. جتنی دیر پانی ہمارا جو ہے وہ بوائل ہو رہا تھا اس میں ہم نے ڈالا تھا 1 ٹی اسپون سالٹ ڈالا تھا, 2 ٹیبل اسپون بھر کے اس میں نے اولیو آئل کے ڈالے تھے تاکہ پاستا کھلا کھلا بوائل ہو جائے. 7 منٹس کے لیے بوائل کیا تھا, اس کو اسٹرینر میں ڈالا تھا. ہمارے پاس ٹائم کیونکہ بہت کم ہوتا ہے تو ہم کچھ پریپ پہلے سے کر لیتے ہیں. اس کے علاوہ اس کو جب وہ 7 منٹس تک بوائل ہو جاتا ہے تو الدانتے کو کہتے ہیں, جو آپ کا پاستا 70% ریڈی ہو جاتا ہے, کک ہوتا ہے, کہ وہ جب آپ مزید اس کو ساس میں کک کریں تو وہ مشی نہ اور ٹوٹے نہ.
ठीक है जी, उसको हमने बॉईल करने के बाद एक स्ट्रेनर में बड़े में डाला और ऊपर से आपने टैप वाटर पे से उसको रंच कर दिया, जैसे ठंडा पानी उसके ऊपर डाल के, उससे वो पास्ता अलग हो जाता है, चिपकता नहीं है। फिर स्ट्रेनर को 2-3 दफ़ा आपने झटके दे के झाड़ देना सारा पानी, और उसको दोबारा से ऑलिव ऑयल लगा के आप ये पोर्शंस बना के भी रख सकते हैं ताकि आपका टाइम बचे। ये करना है। ये मैंने आपको पास्ता बॉईल करने का एक तरीका बता दिया। इसके साथ मेरे पास है तकरीबन 2 कप मिल्क पैक और तकरीबन 2 कप कुकिंग क्रीम है, क्रीम चीज़ है 1/4 कप, ऑरिगानो एज पर टेस्ट, हल्की सी सीजनिंग के लिए ब्लैक पेपर, सॉल्ट, बटर, चॉप्ड गार्लिक, पार्मेजान चीज़। ये हम गार्निश करेंगे। मशरूम्स हैं, मशरूम्स आप स्किप करना चाहें स्किप कर दें, चिकन ऐड करना चाहें आप चिकन भी ऐड कर सकते हैं। मैं चिकन इसलिए आज नहीं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि हमारी सारी रेसिपीज़ में तकरीबन चिकन, काफ़ी सारी रेसिपीज़ हम कर चुके हैं माशाल्लाह से। और इसके साथ है ये पार्मेजान चिप्स, इसको मैं गार्निश में यूज़ करूँगी। इसकी भी मैं आपको तरीके बता दूँ। आपने पार्मेजान चीज़ ब्लॉक को कट करना है और चीज़ ग्रेटर से उसको ग्रेट करना है, कद्दूकश करना है, जैसे कैरेट्स को करते हैं गाजर के हलवे के लिए। और उसको आपने सिलिकॉन पैड होता है, सिल पैड भी कहते हैं, जो बेकिंग शीट होती है, या 2 बटर पेपर एक के ऊपर एक रख के उसके ऊपर आपने पार्मेजान चीज़ को फैला देना है। उसके बाद आप उसको ओवन में रखेंगे, 5 से 7 मिनट के लिए ओवन में रखेंगे। उसको आप बहुत हल्के टेम्परेचर पे 120 to 150 डिग्री सेंटीग्रेड में और निकाल लेंगे। मैंने टाइम बचाने के लिए पहले कर लिया था। उसको फिर आप रूम टेम्परेचर पे छोड़ देंगे, उसको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, तो वैसे क्रिस्पी आपके पार्मेजान क्रिस्प बन जाएंगे और ये गार्निशेस में बहुत अच्छे लगते हैं। और उसको आप ऐसा क्रैकर भी खा सकते हैं टेबल पे, मतलब पोस्ट इफ्तार विद कॉफ़ी, या आप ईद की ट्रॉलीज़ पर रखना चाहें रख सकते हैं। अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करते हैं रेसिपी। मैंने सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी बटर, जो मेरे पास था, मेरे पास टीस्पून है इसलिए मैं इसको 3 डाल रही हूँ। टेबल स्पून आपने 2 रख लें। 2 टेबल स्पून आप इसमें बटर डालें। फिर आप इसके अंदर डालेंगे गार्लिक 2 टीस्पून। इसके बाद आप इसमें डालेंगे मशरूम्स, अगर ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा डाल दें, ठीक है। मशरूम्स अगर आपके पास फ्रेश मशरूम्स है, वाइट बटन मशरूम्स है, तो उसके भी स्लाइस करके आप वो भी डाल सकते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम कुक करेंगे। जस्ट इन केस ना मिले तो आप कोई भी क्रीम लें जो पैकेट्स में आती है, उसके अंदर एक पैकेट में आपने आधा कप पानी डाल के मिक्स करके रख लेना है ताकि वो क्रीम हटे। अच्छा, मैं इसमें ना ब्लैक पेपर डाल रही हूँ, तकरीबन 1.5 टीस्पून, 1.5 टीस्पून जितना ब्लैक पेपर डाला है, तो थोड़ा सॉटे करेंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे ऑरिगेनो 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा डाल देते, क्योंकि इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है कॉन्टिनेंटल खानों में। 1 टीस्पून आप इसमें सॉल्ट डाल दें, सॉल्ट पे थोड़ा सा हल्का हाथ रखिएगा। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी, ये हमारी आ गई है कुकिंग क्रीम। ये देखें, ये हमारी इतनी अच्छी थिक सी सॉस रेडी है। ये हर मतलब रेस्टोरेंट वाला जो पास्ता का फ्लेवर जो आप लोग कहते हैं कि घरों में नहीं आता, ज़्यादातर रेस्टोरेंट्स में कुकिंग क्रीम यूज़ होती है क्योंकि ये वेजिटेबल फैट से बनती है, ये इतनी हेवी नहीं होती। थोड़ा सा मैं इसमें पार्मेजान चीज़ डालूँगी और पार्मेजान हम आखिर में भी डालेंगे थोड़ा सा ना, ठीक है। हमारा खूबसूरत सा सेट और किचन हमें स्पॉन्सर किया है शाज़े किचन ने, शाज़े किचन एंड इंटीरियर्स ने। तो अब हम इसको सॉस को निकाल लेंगे अपने फ्राइंग पैन में, और फ्राइंग पैन में सॉस निकालने के बाद हम बनाएंगे अल्फ्रेडो पास्ता। हाँ, ये हमारे अल्फ्रेडो फेट्टूचीनी पास्ता जो कि बॉईल हुआ था, इसको खाली इसके अंदर डालेंगे, इसको करेंगे हम अच्छे से हमने
मैंने जो है फेटोचीनी बॉयल हुआ डाला है, और उसको इतना रखना है कि बहुत ड्राई ना हो, बहुत वाटरी ना हो, कि जूसी भी रहे। और उसके बाद थोड़ा सा पामेजान चीज़ को मैं स्प्रिंकल करूँगी और उसको थोड़ा टॉस करेंगे, और अब आपको हम डिश आउट करके दिखाएंगे। इफ्तार से पहले या इवन इन योर सहरीज़। अच्छा, इसके लिए ये है आइस एंड मिल्क बेस्ड। इस पे आइस क्यूब्स होते हैं, मेरे पास थोड़े बड़े हैं। अगर आपके पास वो वाला गोल आइस क्यूब ट्रे है जिसमें छोटे छोटे स्कूप्स बन जाते हैं आइस के, आप उसमें भी इसको कर सकते हैं, जमा सकते हैं बर्फ़ को। वो है बहुत थोड़ी सी 1/4 कप मिल्क पे, क्रीम ना हो तो ना भी डालें। कंडेंस मिल्क है। अच्छा, मैं स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में बना रही हूँ। आप लोगों ने जो भी अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं रास्पबेरी, ब्लूबेरी, वो भी कर दें। मिक्स करना है आप इसको, मिक्स भी कर सकते हैं। सागो है यानी साबूदाना, ये 2 से 3 टेबल स्पून लेंगे। 4 टेबल स्पून भी आप यूज़ कर सकते हैं, मैं 4 ही यूज़ करूँगी। ये मैंने रास्पबेरी प्योर बना के रखा था। इट्स जस्ट फ्रोज़न रास्पबेरीज़ मिल जाते हैं ईज़िली हर मार्ट में। उसको मैंने लिया था, तकरीबन आधे से भी कम पैकेट था। उसके अंदर मैंने 2 टेबल स्पून शुगर डाला था, उसको कुक किया और ब्लेंड कर लिया ताकि हमारा थोड़ा सा टाइम बच जाए। स्ट्रॉबेरी जेली पाउडर है, और ये है कंडेंस मिल्क 1/4 कप। ठीक है, ये है मेरे पास तकरीबन 1 लीटर जितना दूध है। अब और ये सबसे पहले हम करेंगे स्ट्रॉबेरी जेली को थोड़ा सा मिक्स करेंगे, जमाना नहीं है, खाली मिक्स करना है। थोड़ा सा सेट होने लगेगी, उसी के ऊपर ही आपने मिल्क ऐड करना है। अच्छा, स्ट्रॉबेरी जेली सबको पता है, या कोई भी जेली हो, जो जेली पाउडर आते हैं, वो आपने उस पर लिखा होता है कि 2 कप पानी में आप डालें। नहीं, आपने इसको आधा, इतना पानी, मतलब तकरीबन ये है आधा ग्लास पानी, ताकि वो थोड़ा जल्दी जमे, सेट हो। ये मैं इसलिए नहीं कह रही कि मेरे पास टाइम कम है, ये आपने इसको बनाना ही इसी तरीके से। ठीक है, या फिर इसमें पानी डालें। पानी के ऊपर मैं डालूँगी 1 पूरा पैकेट स्ट्रॉबेरी जेली का। ठीक है, लम्स बन जाएंगे इसके, और ये फ़ौरन सेट हो जाएगी, क्योंकि खाली डिज़ोल्व करना है आपने इसको। इसी के ऊपर हम बाकी सारी चीज़ें ऐड करते जाएंगे, करते 1 बाय 1। ठीक है, ये हो गया है। टू 3 4 टीस्पून छोटे हैं, तो इसको मैं डबल कर रही हूँ। 4 टेबल स्पून आपने डालने हैं। हम आते हैं इस साइड पे। ये है मेरे पास 1/4 कप व्हिपिंग क्रीम है। इसको मैं एक बड़े बोल में डालूँगी। ये है मेरे पास इस डिज़र्ट की सबसे ख़ास बात यह है, इतनी न्यूट्रिशियस है ये। इसमें दूध है, इसमें क्रीम है, इसमें स्ट्रॉबेरीज़ हैं, इसमें मतलब आप अगर ये एक बोल भी खा लें ना सहरी में, तो यार गुड टू गो। आपको फिर ज़रूरत नहीं कुछ और खाने की इसके ऊपर। ये देखें, बबल करना शुरू कर दिया है, ये बॉयल होना शुरू हो गया है।
जेली को मैंने ये जो मैंने रास्पबेरी की प्यूरी बना के रखी थी ना ज़बरदस्ती, देखें ये मैं इस पर लगाऊंगी, ठीक है। ये बेशक इसके अंदर मिक्स हो जाए, मुझे उससे कोई एतराज़ नहीं है, बस ये यूँ हो जाए। स्ट्रॉबेरीज़ अब आ गया है हमारा ये मेरे पास टेबल तो मैं यूज़ कर रही हूँ, आपके पास पार्सले हो तो आप वो यूज़ कर लें। ये अच्छा, हमारी आज की दोनों रेसिपीज़ वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। अब बढ़ते हैं सवालात की जानिब और इसी के साथ इस सेगमेंट में हमारा जो व्हाट्सएप का नंबर है वो आप लोगों की टीवी स्क्रीन्स पर आना शुरू हो जाएगा। आप लोग अभी अगर ये ट्रांसमिशन देख रहे हैं तो आप फौरी तौर पर अपना जो है वो सवाल भेज सकते हैं, या आप लोग जो है वो इस नंबर को सेव करके बाद में भी कभी व्हाट्सएप पे अपना वॉइस नोट ड्रॉप कर सकते हैं, जो कि हम इस प्रोग्राम में शामिल करते हैं। देखते हैं जी आज कौन हमारे साथ कहाँ से मौजूद है। जी आगा साहब, मैं सैफ बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। आगा साहब मुझे ये बताएं, क्या हम हालत रोज़ा में म्यूज़िक सुन सकते हैं, गाने सुन सकते हैं, तो इसके बारे में क्या है काम है? ठीक हो गया जी। जी मोहतरम, आप ये फरमा रहे हैं कि आया हालत रोज़ा में हम मौसीकी को या मूवीज़ देखना, सीरीज़ देखना हम इसको सुन सकते हैं कि या नहीं। तो देख लीजिएगा कि अगर सोशल मीडिया पर कोई ऐसा प्रोग्राम है कि वो बिल्कुल हम यकसर किसी चीज़ की वो नफ़ी भी नहीं करते कि वो कोई फ़ायदा मंद है, कोई तारीख़ी है, कोई जोग्राफियाई है, आप उसको देख सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मौसीकी का ताल्लुक़ है तो आका फरमाते हैं इन्नमा बुइस्तु बिकस्रिल मज़ामीर, मुझे तो अल्लाह करीम ने इसलिए ही भेजा है कि मैं आलात मौसीकी को तोड़ डालूँ। और एक ये है कि रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह करीम ने मौसीकी के मुकाबले में, उसको तो मुकाबले में भी नहीं कहना चाहिए, यानी मुझे और आपको अल्लाह करीम ने कुरान मजीद अता फरमाया है, तो आप कुरान मजीद को पढ़िए भी,
اس پر غور بھی کیجئے گا۔ میں نے کل یا پرسوں کسی کے سوال میں یہ بات کہی تھی کہ شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ سے ایک آدمی نے کہا کہ جب میں قرآن پڑھتا ہوں مجھے نیند آتی ہے، اور جب میں موسیقی وہ محفل میں بیٹھتا ہوں مجھے نیند نہیں آتی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں اس محفل کی مثال اس پلنگ کی طرح ہے جس پر پھول بچھے ہوئے ہوں، اور یہ وہ پلنگ ہے جس پر کانٹے بچھے۔ تو مطلب یہ ہے کوشش کیجئے گا کہ اوائڈ کریں اور یہ وقت ایسا گزر جائے گا، یہ خواب کی طرح یہ وقت گزر رہا ہے۔ یہ آج ہم پہلے وہ عشرے میں، کچھ وقت کے بعد ہم جناب دوسرے عشرے میں، اور کچھ وقت کے بعد تیسرے عشرے میں۔ تو ابھی بات جو ہو گئی کہ صبر عن المعاصی، کہ گناہوں سے بھی صبر کرنا ہے۔ جی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ روزہ جو ہے یہ بندے کو بندہ بنانے کے لیے، کس کا؟ اللہ کا۔ اگر آپ یعنی کہ آپ روزے میں بھی وہی امور سر انجام دیں جو بغیر روزہ کے باقی ایام میں دیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ روزہ کی وہ جو روحانی فیض ہے وہ آپ حاصل نہیں کر رہے۔ بس میں جلدی سے بات کر دوں، امام موسیٰ کاظم کا گزر ہوا ہے گھر کے سامنے سے، اور اس کے اندر سے گانے کی آواز بڑی بلند سے آ رہی تھی، اور اس کا کوئی غلام ہے وہ باہر نکلا، تو امام نے اس سے پوچھا یہ آزاد کا گھر ہے یا بندے کا گھر ہے؟ تو اس نے کہا جی یہ تو آزاد کا گھر ہے۔ امام یہ کہہ کے چلے کہ واقعاً یہ اگر اپنے آپ کو کسی کا غلام سمجھتا تو ایسا نہ ہوتا۔ پھر جب وہ واپس گیا نوکر، تو اس نے مالک نے پوچھا کہ تو نے دیر کیوں لگائی؟ اس نے کہا اس طریقے سے ایک شخص میرے سامنے سے گزرا ہے، تو اس نے مجھ سے سوال کیا کہ یہ آزاد کا گھر ہے یا غلام کا؟ تو اس نے کہا تو نے کیا جواب دیا؟ میں نے کہا کہ آزاد کا گھر ہے۔ تو اس نے جوتے نہیں پہنے، بشر اس کا نام تھا، اس نے جوتے نہیں پہنے، اور وہ امام کے پیچھے بھاگا بغیر جوتوں کے، امام کو روک کے کہنے لگا امام آپ کا گزر میرے گھر کے سامنے سے ہوا ہے، آپ نے میرے گھر کے غلام سے پوچھا ہے، نوکر سے پوچھا ہے کہ یہ آزاد کا گھر ہے یا غلام کا، تو آپ نے کہا یہ آزاد کا گھر ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ امام نے فرمایا اگر تو اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھتا تو اللہ کی نافرمانی نہ کرتا، یہ جو تو اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ تو آزاد ہے، تو اللہ کا عبد نہیں ہے، بندہ نہیں ہے۔ تو لہذا یہ ہے کہ یہ روزہ تو ہمیں اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرنے کے لیے اللہ نے واجب قرار دیا، اس میں فائدہ تو ہمارا ہی ہے، ہماری روح پاک ہو، ہمارا نفس پاک ہو۔ اور یاد رکھیے گا روزے کا تعلق صرف بدن سے نہیں ہے، اس پہ ایکسرسائز اگر ہم کریں تو ہم روزے کے ذریعے اپنی روح کی تطہیر بھی کر سکتے ہیں، وہ اسی طریقے سے ہم کر سکتے ہیں۔ اگلے کالر کی جانب بڑھتے ہیں۔ جی کون کہاں سے؟ السلام علیکم مولوی صاحب، میں آمنہ سیالکوٹ سے بات کر رہی ہوں، اور میرا سوال یہ ہے کہ جو روزے کی نیت ہے اس کا کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ مجھے اس کے بارے میں تھوڑی رہنمائی فرمائیں، شکریہ۔ کل بھی اس پر بات ہو گئی تھی اور آج پھر بھی اس پر کر لیتے ہیں کہ نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے، اور جب آپ صبح سویرے روزہ رکھنے لگتی ہے تو بس آپ یہ کہیے گا کہ آج میرا روزہ ہے، بس اتنا بھی کہہ دینا کافی ہے۔ پھر کچھ کلمات بھی وہ کتب میں مذکور ہے، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، لیکن اس کا کوئی حدیث سے اور قرآن سے تعلق نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک شخص ہے وہ نماز کے لیے گھر سے چل پڑتا ہے، وضو کرتا ہے، مسجد کی طرف رواں دواں ہوتا ہے، بس یہ اس کی نیت۔ ٹھیک ہے، دل میں نیت۔ اگلے سوال کی جانب جی ہم بڑھتے ہیں۔ کون صاحب کہاں سے؟ السلام علیکم علامہ صاحب، میں نائلہ بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ بچے جو ہوتے ہیں جب وہ روزہ رکھنا شروع کرتے ہیں تو ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ سارے کے سارے 30 کے 30 روزے جو ہیں وہ رکھ لیں، لیکن آہستہ آہستہ ان کو ہم نے روزوں کی طرف لے کر آنا ہوتا ہے۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ وہ کون سی پراپر ایج ہے جس میں کہ بچوں کو روزہ رکھوانا ایک ایک یا دو دو شروع کر دینے چاہیے جب انہیں شوق؟ جی علامہ شامی رحمہ اللہ نے اس پر لکھا ہے، اللہ اکبر، کہ جیسے روزہ بمثل نماز ہے، کہ جیسے نماز میں آپ 7 سال کی عمر میں عادت ڈالتے ہیں، 10 سال میں پھر کچھ سختی کر لیتے ہیں، اور پھر 13 سال کے قریب یا اس سے آگے پیچھے انسان جب بالغ ہو جاتا ہے، موسم کا بھی اس میں دخل ہے اور بھی کئی چیزوں کا، تو پھر جناب من وہ شخص پابندی سے نماز یا روزہ ادا کرنا شروع کر لیتا ہے۔ تو ایسے ہی بچے کو بھی بندہ عادت ڈالے شروع میں، اور قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ ہے، کوئی بھی کام ہو لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ
तबक, यानी आहिस्ता आहिस्ता आप उसको करें। तो आज वो 1 रोज़ा रख ले, फिर अगले हफ्ते में 2 रख लें, उससे अगले हफ्ते में 3 रख लें। हाँ देखिए, यकदम उस पर ये सारा बोझ डाल देना और जब है वो बच्चा, ये भी मुनासिब नहीं। और उसको पहले से आदी न बनाना, उसको पहले से आदी न बनाना और फिर एकदम से। और ये जो हमारा हाल है कि हमें जो रमज़ानुल मुबारक के रोज़े बड़े अजीब से लगते हैं, उसकी एक वजह ये है कि हम साल के 11 महीनों में रोज़े नहीं रखते। माफ़ कीजिएगा मुझे क़ारीन भी कि हम नहीं रख, अगर हम साल के 11 महीनों में अय्याम 20 के रोज़े रख लें, यानी 13वीं 14वीं और 15वीं के, और हर हफ्ते में पीर को और जुमरात का रोज़ा रख लें और योम आशूर का रख लें और जो कई हैं, तो फिर यकीन जानिए रमज़ान के रोज़े जो है वो हमें वो नहीं महसूस। जी, मकतब तशय्युअ में फ़िक़्ह जाफ़रिया में 9 साल की बच्ची, उस पर नमाज भी वाजिब है, रोज़ा भी वाजिब है, और इसकी एक और शर्त है वो मैं बयान नहीं कर सकता, सवाल की सूरत में मैं बयान कर दूंगा। और 15 साल का बच्चा, उसकी भी एक शराइत है, वो 3 शराइत है, या तो 15 साल का हो और अगली 2 शराइत है, अगर आप गैर मुनासिब ना हो तो बयान कर दूं। यानी कि बगल में बाल का आ जाना, ज़ेरे नाफ बाल का आ जाना, या 15 साल का हो जाना, एक शर्त और है वो मैं बयान नहीं कर रहा। तो इस सूरत में उस पर नमाज भी वाजिब है, रोज़ा भी। ठीक है जी, आखिरी सवाल हमारे पास क्या है जी, सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आसिफ है, मैं इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ। मैं मौलाना साहब से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में बहुत सारे लोग जो हैं वो उम्रा के लिए जाते हैं, और एक मसला दरपेश होता है कि मुसाफिर जो हैं या मुकीम मुसाफिर वहाँ पे जो है वो कसर नमाज पढ़ते हैं, लेकिन रमज़ानुल मुबारक में उम्रा करने का मकसद ये होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बरकतें और रहमतें वहाँ पे जाएं, इबादत करें और वहाँ से हासिल करें। तो इस पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। उलमा और मौलाना हजरात इस पे हमें डिफरेंट गाइड करते हैं कि हमने वहाँ पे कसर नमाज पढ़नी है, जबकि हमारा मकसद तो सिर्फ वहाँ पे जाना, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करना। दिनों का भी नहीं, मैं बताता हूँ, कोई मसला नहीं, कोई मसला। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह मैं रमज़ान में भी मैंने वहाँ गुजारा और जाने का इत्तेफाक होता रहता है, हज में भी। उस रमज़ानुल मुबारक में आका फरमाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने इस्तक़बाल रमज़ान में ये बात की थी कि रमज़ान में उम्रा करना ऐसा है जैसे मेरे साथ उम्रा किया जाए। क्या बात है, सुभान अल्लाह। इसलिए, और एक ये है कि रमज़ानुल मुबारक में जब आप सफ़र करते हैं, उम्रा इख्तियार करते हैं, वहाँ तवाफ़ करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े अतहर पर आप हाज़िरी देते हैं, उसका एक अजीब सा आलम है। दमकता रहे तेरे रोज़े का मंजर, सलामत रहे तेरे रोज़े की झाली, हमें भी अता हो वो शौक़ अबू ज़र, हमें भी अता हो वो जज्बे बिलाली। वो उसका अपना एक मंजर है। अब अर्ज़ करता हूँ आपके सवाल की तरफ। तो अर्ज़ ये है कि अगर आप यहाँ से हज में चले गए, उम्रे में तशरीफ़ ले गए, अगर मक्का मुकर्रमा में आपके 2 हफ्तों से कम दिन आ रहे हैं तो आप उसमें मुसाफिर हैं। अपने थिए जो आप नमाज पढ़ेंगे मुसाफिराना पढ़ेंगे, हरम के इमाम के पीछे पढ़ेंगे, मुकम्मल पढ़ेंगे। मदीना मुनव्वरा आप तशरीफ़ ले गए, 2 हफ्तों से कम आपका क़याम है वहाँ होटल में या किसी जगह, आप मदीना मुनव्वरा इमाम के पीछे जाते हैं, मुकम्मल नमाज पढ़ेंगे। अपने थिए आप नमाज पढ़ते हैं तो आप मुसाफिराना पढ़ेंगे। अगर 2 हफ्तों से ज़्यादा इन दोनों हरमैन में, मक्का मुकर्रमा में भी और मदीना मुनव्वरा में भी, इन दोनों हरमैन में कहीं भी 2 हफ्तों से ज़्यादा आपका क़याम है तो फिर आप अपने थिए भी मुकम्मल नमाज पढ़ेंगे और इमाम के पीछे भी। बस इतनी जी, हमारे यहाँ ये है कि बैतुल्ला में और मस्जिद नबवी में और मौला हुसैन का गुंबद जो है वहाँ पे आपको इख्तियार है पूरी पढ़े, ठीक है, उसमें कोई, क्योंकि मासूम फरमाते हैं कि बैतुल्ला जो है या रसूल खुदा की जो मस्जिद नबवी जो है ये मोमिन का घर है, लिहाजा वो उस पर मुसाफिर वाले वो हकाम नहीं आएंगे, उसे इख्तियार होगा, चाहे वो 10 दिन से कम रहे, 10 दिन से ज़्यादा रहे। वो अगर मिसाल रोज़ा रसूल के पास है तो पूरी पढ़ सकता है, बैतुल्ला में है तो पूरी पढ़ सकता है, मौला हुसैन के रोज़े के गुंबद के नीचे है तो पूरी पढ़ सकता है। ठीक हो गया जी। अपने टॉपिक को जी आगे लेकर बढ़ते हैं। ख़वातीन हज़रात, आप लोग सवाल जो है अगर भेजना चाहते हैं तो वो आप लोग बिल्कुल भेजिएगा, हम शामिल कर लेते हैं प्रोग्राम में।
मुफ्ती साहब ये फरमाइएगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस जो सामने आती है सब्र के हवाले से, कि आप फरमाते हैं कि सब्र तो वो है जो मुसीबत के शुरू में कर लिया जाए, जो पहली चोट पे कर लिया जाए। और इसको अगर हम दुनियावी एतबार से, चूंकि मुझे किसी ने एक किस्से के साथ सुनाया था, उसने बड़ी प्यारी एग्जाम्पल दी कि आप देखें, आपको जैसे ही ठुड्डा लगता है तो आप एकदम से बोलते हैं कि यार ये क्या हुआ है। तो आपको जब एक मुश्किल दरपेश आती है, आप सब्र नहीं करते, उसके साथ ही दूसरी मुश्किल जो है वो आ जाती है। तो इस हदीस का ज़रा मफ़हूम समझाइए। इस हदीस का मफ़हूम यही है कि एक खातून भी रो रही थी कब्र के किनारे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे भी फरमा रहे थे, और भी कई वाक़यात इससे जुड़े हुए हैं। तो सब्र तो यही है, अस्सब्रु इंद सदमतिल ऊला, जी, कि पहले झटके में ही आप अपने आप को क्या कर लें, सब्र, और उस पर अजर भी फिर मिलता है उस पर। और अगर आप उससे पहले जो है वो रुखसारों को पीट लें और गिरबानों को फाड़ दें, आका खुद फरमाते हैं ये रुखसारों को पीटना और गिरबानों को फाड़ना और ये जाहिलियत के पुकार, और उसके बाद फिर जनाब मन कहना, वो तो फिर ज़माना मरहम है। तो यकीन जानिए जब भी कोई मुसीबत आ जाए इंसान पर, तो इंसान को अव्वल मरहले में ही अल्लाह की तरफ क्या कर लेना चाहिए, रुजू कर लेना, और फिर वो सब्र दे देता है। वले रब्बिका फस्बिर, आप अपने रब के लिए ही क्या इख्तियार कीजिए, सब्र। जी, सबसे बड़ी मिसाल ग़ज़वा खंदक में अमीरुल मोमिनीन की है कि जब अमर इब्न अब्दवद के सीने पे अमीरुल मोमिनीन आए तो उसने गुस्साखी की, यानी थूक दिया। अमीरुल मोमिनीन हट गए, टहलना शुरू कर दिया। अब मैं अगर करूँगा, ठीक है जी, हाँ, टहलना शुरू कर दिया। तो सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह ये क्या है? तो अमीरुल मोमिनीन से फिर रसूल खुदा ने पूछा कि ये थूक दिया, यानी कि इतना क्रिटिकल मौका कि इतना बड़ा अरब का पहलवान वो नीचे है, सलवार उसकी गर्दन पे है, और आपने छोड़ दिया। फरमाया उसने गुस्साखी कर दी थी, अगर उस लम्हे में उसे मारता तो उसमें मेरी मर्जी शामिल हो जाती, मेरी अना मर्जी हो जाती, शामिल हो जाती। अली का भी वो वार करते नहीं है जो अल्लाह की रज़ा के बगैर हो। तो सबसे बड़ी मिसाल हमारे पास मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद की है कि जो अपने कातिल को शरबत भी पिलाते हैं, अपने कातिल को शरबत अमीरुल मोमिनीन ने पिलाया ठोकर मार के, हाँ जी, ज़रब लगी हुई है। उसके बाद इमाम हसन को कहा कि जाके इसे शरबत पिलाओ। ये सब, इससे बड़ा सब्र क्या है? यानी कि सर में लग गई है, और फिर उसके बाद अमर इब्न अब्दुल्लाह के सीने पे भी है, उसके बावजूद भी छोड़ दिया। क्यों? उन्होंने हमें बता दिया कि आप अपने अमल में इखलास पैदा करें और उस अमल को फ़कत करें अल्लाह की रज़ा के लिए। बेशक। अल्लामा साहब, हमारे माशरे में अदम बर्दाश्त बहुत ज़्यादा है, मर्द हज़रात में गुस्सा बहुत ज़्यादा है, और फिर कुछ मर्द हज़रात ये भी कहते हैं कि गलत बात बर्दाश्त नहीं होती। तो क्या कोई सही बात को भी बर्दाश्त करना पड़ता है? नहीं, ये पहली बात तो ये है कि उनके नज़दीक गलत है क्या। पहले तो गलत की डेफिनेशन की जाए ना। अगर मेरा रोज़ा है और मेरे रोज़े में मुझे कोई कहे कि आप पानी उठा के दें, तो मुमकिन है मैं समझूँ ये गलत है और इसमें मैं आग बगोला हो जाऊँ, तो ये गैर मुनासिब है। पहली बात तो यह है कि गलत और सही की यानी कि अपना डेफिनेशन हमें करनी चाहिए कि गलत क्या है और सही क्या है। गलत किसे कहते हैं? कि जिसकी वजह से आपकी कल्ब को, आपके दिल को कोई ज़्यादा चोट पहुंचाए, उस पर अगर कुछ ना कुछ आप बरम हो भी जाएं, क्योंकि वो एक आपके दिल के साथ, आपके एहसास के साथ खेला गया है। छोटी छोटी बातों पर ये क्यों ना किया, वो क्यों ना किया, और इसे आपने समझ दिया कि आपने गलत कर दिया। बर्तन यहाँ पर क्यों पड़े हैं, खाना यहाँ पर क्यों पड़ा है, रोटी यहाँ पर क्यों रखी हुई है, इस पे आपने बरहम नहीं होना, इस पे अपने आप को आपने कंट्रोल में। मैं एक आयत मुझे याद आ गई, अल्लाह करीम फरमाते हैं वसारिऊ इला मगफिरतिम मिन रब्बिकुम। ज़ाहिर है रमज़ान मगफिरत का महीना भी है कि तुम दौड़ो, हालांकि दौड़ना वक़ार के ख़िलाफ़ है, लेकिन मतलब यहाँ एहतिमाम के साथ चले जाओ। इला मगफिरतिम मिन रब्बिकुम, अपने रब की मगफिरत की तरफ, व जन्नतिन, और उस जन्नत की तरफ, अर्दुहस समावातु वल अर्द, जिसकी चौड़ाई ज़मीन और आसमान के बकदर है, उइद्दत लिल मुत्तक़ीन, और ये जन्नत हमने तक़वा वालों के लिए तैयार की है। अल्लज़ीना युनफ़िक़ून फ़िस्सर्रा, अब कुरान करीम बताता है कि तक़वा वाले कौन हैं। फरमाया ये वो लोग हैं जो खुशी में भी खर्च करते हैं, वज़र्रा, और तंगी में भी क्या करते हैं, खर्च करते हैं, और वल काज़िमीन अल गैज़, गुस्से को क्या करते हैं, पी लेते हैं। आका फरमाते हैं लैसा शदीदु बिस्सुरआ, पहलवान ये नहीं है कि वो किसी को नीचे गिरा दे। इन्नमा शदीदु, पहलवान तो वो है अल्लज़ी यमलिकु नफ्सहु इंदल गज़ब, कि वो गुस्से के वक्त में नफ्स पर क्या पाले, काबू पाले। हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद है जी, कामरान मियाँ वाली से। अस्सलाम वालेकुम कामरान। जी जी मियाँ वाली, बड़ा अस्सलाम वालेकुम, कामरान बात कर रहा हूँ मियाँ वाली से। मौलाना साहब से सवाल मेरा ये है कि क्या अज़ान तक हम कुछ खा पी सकते हैं या सहरी का टाइम ख़त्म हो जाता है? ठीक, अजान सहरी की है उस वक्त तक कुछ खा सकते जी। कल भी इस पर बात हुई थी कि रमज़ानुल मुबारक का जो ताल्लुक़ है वो वक्त के साथ है,
اذان کے ساتھ نہیں ہے. اذان کبھی ہو سکتا ہے پہلے بھی اور عام طور پر بعد میں بھی دی جاتی ہے. تو جیسے رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں ایسے اوقات کا جاننا بھی فرض ہے. جی جی بس وہی پہلے بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ اذان کا روزے کی افطار اور سحر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. طلوع فجر سے لے کے غروب آفتاب تک یہ روزے کا یعنی کہ ٹائم ہے, اسے آپ نے پورا کرنا ہے. اچھا مفتی صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس وقت امت مسلمہ کی جو سچویشن جو حالات ہیں تو ہمیں اس وقت صبر استقامت کی ضرورت ہے یا صبر حکمت کی جو ہے وہ ضرورت ہے؟ دونوں کی ضرورت ہے. یعنی بہت سارے کام ایسے ہیں کہ آپ ان کو حکمت سے لے لیں اور بہت ایمان والوں کی ایک نشانی بھی یہی ہے. ایک صحابی آئے اور اس صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. تو آقا نے فرمایا آمنت باللہ ثم استقم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. تو بہت سارے کاموں میں استقامت کا مظاہرہ بھی کر لینا چاہیے اور کئی کاموں میں حکمت کو بھی اختیار. جی علامہ صاحب کچھ آپ ایڈ کریں. یہ جو غزہ میں ہو رہا ہے, یہ جو فلسطین میں ہو رہا ہے, یہ جو مسلمانوں کی ہماری حالت ہے, اس پہ خاموشی صبر نہیں کہلائے گی, جرم کہلائے گا. یہ جرم ہے, یہ صبر نہیں ہے. ہم اپنے آپ کو صبر کی چادر میں لپیٹ نہیں سکتے اور اپنے آپ کو بری نہیں کر سکتے. بلکہ آیت اللہ خامنائی کا ایک جملہ ہے, وہ کہتے ہیں قیامت کے دن مظلومین فلسطین کے مظلوموں کے بارے میں مسلمانوں سے پوچھا جائے گا. تو جس کا پوچھا جائے گا تو اس پہ تو ہمیں خاموشی نہیں کرنی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد, اللہم ادخل علی اہل القبور السرور, اللہم اغن کل فقیر, اللہم اشبع کل جائع, اللہم اقص کل عریان, اللہم اقض دین کل مدین, اللہم فرج عن کل مکروب, اللہم رد کل غریب, اللہم فک کل اسیر, اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین, اللہم اشف کل مریض, اللہم صد فقرنا بغناک, اللہم غیر سوء حالنا بحسن حالک, اللہم اقض عنا الدین واغننا من الفقر انک علی کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بہت شکریہ مفتی محمد القریشی صاحب آپ کے وقت. بہت شکریہ علامہ امجد حسین نقوی صاحب آپ کے وقت کا. خواتین و حضرات فیڈ بیک ضرور شیئر کیجیے گا. ملاقات ہوگی آپ لوگوں سے کل. آپ کو 5ویں افطاری بہت بہت مبارک ہو. اسلام آباد, راولپنڈی اور گرد و نواح میں اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے. باقی حضرات جو ہیں وہ اپنے وقت کے مطابق روزہ افطار کریں. مجھے حافظ نجم ثاقب اور مجھے ایمان نواز کو دیجیے اجازت. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.